Hello. Am I audible? Good afternoon, all. Yes. So, with all due respect, today we have with us esteemed guest who is going to introduce and make us aware on this very important topic and very relevant in today's time. That is related to cyber awareness. The online financial fraud is the major target. To introduce our guest, Shri Ayush Jain is currently posted as an assistant superintendent of police in the Degam division of Gandhinagar, Gujarat. Sir is belonging from Jaipur and he has done mechanical engineering from National Institute of Technology, Jaipur. Sir has worked in the private sector in the Kane, India, and eventually appeared for UPSC exam and joined Indian Forest Service in Odisha and later joined in the Indian Police Service, and currently he is actively into the Indian Police Service. So today's our session, sir would be emphasizing on the how this cyber crime, online fraud is so difficult to handle and how we being aware as citizens and employee can handle this. So to make you aware about the recent data, National Crime Records Bureau 2022 showcases that there are around 65,000 plus cyber fraud, and out of that 50% is online fraud. So 50% is online financial fraud. So this data which I am talking is only the reported crime. So many go unreported due to various reasons. So the gravity of this crime is such a big, so we being employees, we need to be aware. If we are aware, we'll make other people aware in our family, and in a way we can secure our like society. So basically this is spreading like a pandemic. It's spreading like an epidemic. In everyday newspaper, you will see this kind of crime being reported. So how we can solve this and how we can tackle this is important. So today in this session, how what they will be explaining is related to the types of online financial fraud, like how you can report, where to report, how police helps in tackling this crime, what do's and don'ts you should follow as citizens and employees, and finally what final like advice and outcomes or outputs will be shared by the police officers. So today we have with us the entire team, so who will be guiding us through this entire concept and how we can handle this. So along with Ayush Jain sir, we have from cyber crime police station also working day in and day out with this. So first Ayush Jain sir will be briefing us about this, and later one of the cyber volunteer who has taken more than 150 sessions would be guiding us with detailed online financial fraud strategies and how we can tackle this. So please join me in welcoming Shri Ayush Jain sir with a round of applause. I would request Dilip Bhai to kindly come forward and present the bouquet as a gesture of our heartfelt welcome to the sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Now, sir will start the session and eventually be followed by the cyber volunteer who will be taking in detail session on the cyber financial fraud. Thank you. Over to you, sir. So, good afternoon to all, and thank you, Divyam ji, for a kind introduction. It is an afternoon session, so I will keep it brief so you guys do not get bored or sleep after lunch. Language, it would be mix of Hindi and English. I guess that is okay with everyone. Okay. So basically, you are all young guys. We are of the almost same age. So you do not need any introduction what cybercrime is. You are working in a financial company dealing with the IT systems day in, day out.
सो आई थिंक आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरा एक्सपीरियंस उस सेंस में अलग है कि व्हाट हैपन्स आफ्टर अ क्राइम इज़ कमिटेड. तो also what steps can be taken. Firstly, we'll understand what types of crimes are coming, what steps you can take to prevent those cyber crimes, and individually आप लोग क्या कर सकते हैं. मतलब basically you are dealing with computer systems day in and day out, तो आप अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और नॉट इन योर प्रोफेशनल लाइफ बट ऑल्सो इन पर्सनल लाइफ. You are having a mobile phone of your own, maybe an iPad or an laptop, तो आप अपना बहुत सारा इंटरेक्शन जो है वो सब इंटरनेट बेस्ड है आजकल. तो उस सिनेरियो में भी आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिवेंट योर हार्ड एंड मनी और इनकम और इन्वेस्टमेंट वेरी सेफ, एंड ऑल्सो save yourself from any data leakage or any sort of identity theft. Next. So firstly, what is cyber crime? As I told कि किसी भी तरह का क्राइम जो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो रहा है, that starts on an electronic media, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वॉल्व हो. Not necessary it is happening over internet or not. It mostly happens over internet. But अगर कोई आपको करके उस पर कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, बोल रहा है कि आप इतना पैसा मुझे दो और मैं आपको वापस रिटर्न देता हूँ, एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग ओवर इंटरनेट, तो इट ऑल्सो काउंट्स एज साइबर क्राइम. तो बेसिकली लार्ज पार्लेंस में वी अंडरस्टैंड दैट एवरी सॉर्ट ऑफ क्राइम दैट इज़ हैपनिंग ओवर इंटरनेट और जिसमें आपका कुछ इंटरेस्ट डिजॉल्व हो रहे हैं, तो दैट इज़ साइबर क्राइम. नेक्स्ट. तो मैग्नीट्यूड तो वी ऑल नो, क्योंकि फ्रॉम 2020 और मे बी आफ्टर दी स्टार्ट ऑफ आई वुड से जो भी बेंचमार्क है और जो भी एक लैंडमार्क रहा, दैट इज़ आफ्टर दी जियो 3G केम आफ्टर 2016, जब लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट आ गया, स्मार्टफोन्स मल्टीप्लाई हो गए, लोगों को इंटरनेट एक्सेस बढ़ गया. तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट और डेटा. इफ़ यू सी 2021 में अराउंड 1,37,000 साइबर कंप्लेंट्स थी, and if you see in 2024 it is almost 17 lakhs. Similarly, if you see the fraud amount जो cyber crime में गया है, fraud amount, the amount is in crores. In 2021 it was around 551 crores, and in 2024, which is the year that has gone by, 33,165 crore rupees. तो that is the magnitude. और अगर आप इसको किसी मैथमेटिकल स्केल पे भी अगर देखें, तो it is not something which is growing linearly, it is exponential. और इसके exponential होने के मेजरली 2-3 कारण हैं. फर्स्टली कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का एक्सेस लोगों के पास बढ़ रहा है, और ये एक नंबर है जो कि रिपोर्ट हुआ है. बहुत सारा ऐसा भी क्राइम हो रहा है जो रिपोर्ट नहीं हो रहा है. तो रिपोर्ट हो रहा है तो मतलब एक्सेस लोगों का बढ़ रहा है, एक अवेयरनेस भी लोगों के लिए बढ़ रही है. वन पॉजिटिव थिंग इज़ कि लोग उसको आगे आके रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब लोगों के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ रही है. उनको पता है कि हमको साइबर क्राइम अगर हमारे साथ हो रहा है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है. तो दे नो कि ओके वी हैव टू कॉल ऑन 1930, देयर इज अ साइबर क्राइम पोर्टल ऑल्सो. बट थिंग इज़ कि कैनवास इतना बड़ा है, और आज हम कुछ टाइप ऑफ साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे. That is something that has happened, but creativity is unlimited. मतलब अगर यहाँ पे आके लोग आपको 20 तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड बताएंगे, पर 100 तरह का ऐसा है जो कि अभी तक हुआ नहीं है और मे बी फ्यूचर में होगा. ठीक है. तो जो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इट इज़ अप टू देयर क्रिएटिविटी एंड इट इज़ अप टू देयर फ्री टाइम. मतलब कि वो किस तरह से कहाँ से लूप होल निकाल के दे कैन कमिट अ साइबर क्राइम. ठीक है. तो एक्सपोनेंशियल नंबर्स के 2 कारण हैं जो मैंने बताया आपको, कि लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस बढ़ रहा है, तो देयर आर मोर पीपल हु आर वल्नरेबल, एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ रिपोर्टेड नंबर, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ रही है हाउ दे कैन रिपोर्ट साइबर क्राइम दैट इज हैपनिंग. नेक्स्ट. सो बेसिकली इफ वी कैटेगराइज टाइप ऑफ साइबर क्राइम, वी से कि सोशल मीडिया बेस्ड फ्रॉड्स है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड साइबर टेररिज्म ऑल्सो. बट हम इसको बहुत ज़्यादा वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं डाल सकते हैं, इन द सेंस कि समथिंग दैट स्टार्ट्स ऑन सोशल मीडिया मे गेट कन्वर्टेड इनटू अ फाइनेंशियल फ्रॉड, और मे बी इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन फाइनेंशियली और वो सोशल मीडिया पे जाकर कुछ ऐसा क्राइम हो जाए,
तो that can also happen. So basically these are three broad categories which we can tell, but these are not watertight. कोई भी चीज़ कहीं से भी चालू होके it can end up anywhere else. So we'll firstly talk about social media frauds, और उसमें भी बहुत तरह के frauds हो सकते हैं, but latest अभी क्या चल रहा है and maybe something that you might have missed or maybe you may be knowing also. तो उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया फ्रॉड्स कौन कौन से हैं जो मे बी लेटेस्ट अभी चल रहे हैं, और व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट इट, मतलब आप खुद की सेफ्टी के लिए उसके अंदर क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट, तो फर्स्टली इज डिजिटल अरेस्ट. आई थिंक इट इज़ अ वेरी हॉट टर्म, मे बी आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट. तो इट इज़ बेसिकली कि कोई आपको कॉल करके डिजिटली इट इज़ रिस्ट्रिक्टिंग यू. व्हाट इज़, मतलब इफ़ आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ लॉ, अरेस्ट इज कि आपने उसकी फ्रीडम कर्टेल कर दी. दैट इज़ व्हाट लॉस इज. फिजिकल फ्रीडम किसी की कर्टेल करना इज अरेस्ट. पर यहाँ पे इट इज़ नॉट बीइंग डन फिजिकली, इट इज़ बीइंग डन डिजिटली. तो मोस्टली इफ़ यू सी कि कोई क्राइम करता है, पुलिस वहाँ पे जाती है, फिजिकली उसको डिटेन करती है, कुछ फॉर्म वॉर्म भरती है, एंड दैट इज़ हाउ इज़ डीम्ड टू बी अरेस्टेड. बट यू सी कि कोई फिजिकली आपको हाथ नहीं पकड़ रहा है, कोई फिजिकली आपको हैंडकफ नहीं कर रहा है, बट ही इज़ अटैकिंग ऑन योर साइकी, एंड इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल. आपकी कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी को लेकर ही इज़ पिकिंग दैट वल्नरेबिलिटी एंड देन ही इज़ साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग यू. तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन डिजिटल फ्रॉड, ये डिजिटल अरेस्ट की somebody will video call you, maybe start with a message and then he will video call you. There is a person who is sitting across the phone, और वो एक, मतलब अगर, क्योंकि अब हम पुलिस में तो वी नो कि what type of uniform is what, तो वो एसपी का ड्रेस पहन के खुद को एसआई बताता है, या एसआई का ड्रेस पहन के खुद को एसपी बताता है, स्टार्स ऊपर नीचे पहनता है, मतलब बेसिकली वेरी शैबी यूनिफॉर्म में एक आदमी बैठा रहेगा, कैप वैप लगा के, खाकी यूनिफॉर्म पहन के, एंड ही विल टेल यू कि आपका कुछ ऐसा पार्सल वार्सल था और अब मैं आपको बचा सकता हूँ, मैं यहाँ मुंबई के साइबर क्राइम सेल से बोल रहा हूँ, आप इतना इतना पैसा मुझे दो, एंड मे बी ही विल मैनिपुलेट यू, यू विल इंटरैक्ट विद हिम. और जैसे जैसे ही आपका डर, जैसे जैसे आपका फियर बढ़ता जाएगा, यू विल गेट इनटू दैट ट्रैप. फिर आप उस ट्रैप में आने लगेंगे, आप उसको पहले 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, वो मतलब कुल मिला के दैट इज मैनिपुलेटिंग योर वल्नरेबिलिटी एंड मैनिपुलेटिंग योर फियर. ठीक है, तो इस तरह से डिजिटल अरेस्ट हुआ. आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ऐसा हुआ. आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोग अवेयरनेस के लिए रील्स भी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, जस्ट टू गेट यू द इंफॉर्मेशन, आप लोगों की अवेयरनेस करने के लिए. तो आई थिंक डिजिटल अरेस्ट इज समथिंग. तो आप लोगों को क्या समझना है सबसे पहले कि अंडरस्टैंड द लॉ. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देयर इज नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट. जो रियल पुलिस है वो आपको फ़ोन करके घंटों घंटों, आपको वीडियो कॉल कोई नहीं करता. पुलिस के पास सच में इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को वीडियो कॉल करेंगे. ठीक है, तो नोबडी विल वीडियो कॉल यू टू प्लेस यू अंडर अरेस्ट. अगर पुलिस, आपने सच में कोई क्राइम किया है तो पुलिस आपको ढूंढ के उठा के ले जाएगी घर पे से, है ना. दैट इज़ वॉट हैपन्स इन अरेस्ट. दैट इज़ वॉट हैपन्स इन अरेस्ट. तो सबसे पहले यू अंडरस्टैंड द लॉ कि देयर इज़ नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट. जो भी होता है वो फिजिकल अरेस्ट होता है. ठीक है, उसके अलावा यू, मतलब कोई अननोन वीडियो कॉल्स आप ना उठाएं. व्हाट्सएप वी ऑल यूज़, आप लोग स्काइप भी यूज़ करते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते होंगे, बहुत सारे देर आर. इंस्टाग्राम पे भी वीडियो कॉल का फीचर है. तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अननोन वीडियो कॉल्स तो आपको बिल्कुल नहीं उठाने, क्योंकि एक अलग तरह का क्राइम भी होता है, दैट इज सेक्सटॉर्शन. यू माइट हैव, विल टॉक अबाउट इट लेटर. बट अननोन वीडियो कॉल्स में आपके सामने, आपने फ़ोन उठाया, कोई सामने न्यूड पर्सन आपके सामने आ गया, दे विल रिकॉर्ड अ वीडियो, देन दे विल हरास यू और मे बी एक्सटॉर्ट फ्रॉम यू. तो बेसिकली वॉट वी कैन डू इज़ वी डू नॉट पिक अप एनी अननोन वीडियो कॉल. ठीक है, जो भी होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ही विल कॉल यू ऑन रेगुलर सेलुलर फ़ोन, ऐसा कुछ होगा, बट यू अवॉइड पिकिंग एनी अननोन वीडियो कॉल्स. ठीक है, और वंस यू हैव अंडरस्टूड द लॉ कि अरेस्ट क्या होता है और डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है, तो आप फिर उस चक्कर में आएंगे ही नहीं. यू मस्ट हैव सीन वीडियोज़ विच आर वेरी फनी कि एक आदमी सामने जो कि डिजिटल अरेस्ट करना चाह रहा है, उसने एक रियल पुलिस को ही फ़ोन कर दिया, है ना. दैट हैपेंड इन केरला, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन द वीडियो. तो वो उसी को ही डिजिटल अरेस्ट कर रहा था. तो मतलब दे डू नॉट नो कि हम किसको कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट समबडी हु इज़ अवेयर, तो ही विल नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप. और मतलब अवेयरनेस का भी फ़र्क पड़ा है यहाँ पे. अहमदाबाद में देयर वाज वन स्कूल प्रिंसिपल हु मस्ट हैव मतलब
सीन कि व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट और मुझे सब स्कैम में नहीं पड़ना है, तो ही वॉज अवेयर और मतलब वो स्कैम में पड़ा नहीं है, नहीं मतलब इमीडिएटली रिपोर्टेड टू पुलिस. तो दैट इज़ अ गुड केस स्टडी दैट शोज़ द अवेयरनेस कि जो पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस कर रही है उसका कुछ रियली इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट आई थिंक डिजिटल अरेस्ट. और नेवर सेंड मनी तो मैंने आपको बताया ही कि इन केस आप किसी ऐसे ट्रैप में गलती से फंस जाते हैं, आपका कोई अननोन या आपका कोई नोन फैमिली मेम्बर रिलेटिव फ्रेंड कुछ ऐसा फंसता है, तो कभी भी पैसे किसी को नहीं है. दे विल मैनिपुलेट यू, दे विल प्ले ऑन योर फियर्स, बट अंडरस्टैंड नेवर पे मनी. आप 5,000 रुपये देंगे, फिर वो कुछ और बड़ी बात बोलेगा, आप 10,000 दोगे, 1 लाख तक पहुंच जाएगी बात, तक पहुंच जाएगी और कुछ होना नहीं है, आपका पैसा ही जाएगा. तो नेवर सेंड मनी इन सच केसेस. अगर आपके साथ, मैं नहीं चाहूँ कि आपके साथ हो ऐसा, पर इन केस किसी के साथ हो रहा है, somebody you know जिसके साथ हो रहा है, नेवर सेंड मनी. नेक्स्ट. Second is social media impersonation. I think everybody of us is affected by this. We used to use Facebook, फिर हम Instagram पे आ गए. Now there are so many dating apps also. तो सब जगह फेक अकाउंट्स भरे हुए हैं. बहुत सारे लोग आई थिंक ऐसे भी होंगे जिनके खुद के फेक अकाउंट्स बनाए हुए होंगे यहाँ पे. तो we all are affected by this. Sometimes we are doing this or somebody for various purposes we do that. ठीक है. So I will not talk about that, but this is something we are all affected by. Social media impersonation. कोई भी फेक अकाउंट बना के, मे बी आपका कोई पुराना फ्रेंड होगा, वो बन के कुछ बात करेगा, फंसाएगा आपको, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कुछ भी मांगेगा. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. आई थिंक जो फोटो में दिखा रहा है कि एक आदमी किसी को, लेडी को ल्यूर कर रहा है, एंड आई थिंक नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट उल्टा ज़्यादा होता है. वी ऑल नो. है ना. मोस्टली इट इज़ लाइक दिस. एंजल प्रिया, यू ऑल मस्ट हैव नोन, दैट इज़ अ वेरी फेमस नेम. ठीक है. और मतलब बहुत सारे, इवन यू सी कि बहुत सीरियस क्राइम्स भी ना, मे बी बहुत सीरियस क्राइम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा गया है. इवन मतलब बहुत सारे लोग जो एटॉमिक पावर प्लांट्स में काम करते हैं या फिर किसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी टाइप जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करते हैं, इसरो में काम करते हैं, सम XYZ अनदर नेम, वो दे गेट हनी ट्रैप्ड और दे आर ल्यूड टू, उनको कुछ पैसा मिलता है वहाँ से, एंड दे शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें भी सोशल मीडिया इम्पर्सनेशन से हो रही हैं. वी ऑल नो. तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्टली इज़ वेरीफाई द अकाउंट बिफोर एंगेजिंग. बहुत आसानी से आप देख के पता लगा सकते हैं. आजकल तो AI बेस्ड फ़ोटोज़ भी बहुत सारी आ गई हैं, बट यू कैन ऑल वेरीफाई इट ऑनलाइन, मे बी सब देख के. और उसके बाद कोई अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आपके पास आते हैं, आगे से मैसेज आते हैं, सिंपली इग्नोर और मे बी यू कैन ब्लॉक देम. और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन लोगों के साथ आप शेयर ना करें. मतलब जिस आदमी को आप पर्सनली नहीं मिले हुए हैं उसके साथ कोई भी आप पर्सनल मे बी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन और अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक एनी, मतलब आपका कुछ आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड का नंबर, ऐसा कुछ शेयर ना करें. और एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है बट इट इज़ वेरी, मतलब आप सभी लोगों को पता है, इट इज़ अ वेरी इनफॉर्मल एडवाइस की कर्ब द डेस्परेशन. मतलब है ना, डेस्परेट नहीं होना है ऑनलाइन, क्योंकि दैट इज़ व्हेन योर हार्मोन्स टेक ओवर और फिर आप इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं. ठीक है. तो दैट इज़ वेरी इनफॉर्मल, बट इट इज़ नॉट रिटन हियर, बट इट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस. नेक्स्ट. देन थर्ड थिंग इज साइबर स्लेवरी. तो अर्लियर आप लोगों को पता है कि व्हाट स्लेवरी यूज टू बी, मतलब जो 1800s 1900s में अफ्रीकन पीपल के साथ इंग्लिश लोग करते थे, कि दैट हैपन टू, मतलब दैट यूज टू हैपन इन अ फिजिकल फॉर्म, कि आपको किसी ने डिटेन किया हुआ है, नाउ यू आर फोर्स टू डू सम टास्क, में भी कुछ आपको काम करना पड़ रहा है, बट इट हैज़ नाउ बिकम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. इट इज़ हैपनिंग ओवर साइबर स्पेस. तो उसमें क्या हो रहा है कि somebody is engaging with you now, उसने आपकी किसी vulnerability को पकड़ के, मे बी आपकी desperation को पकड़ के, he is now telling you, he is manipulating you, और वो आपको कह रहा है कि अब now you have to do this type of work with me, otherwise I will do this to you. मे बी किसी ना किसी vulnerability को उठा के उसने आपको trap किया है, और he is telling you to do certain tasks. तो that is what cyber slavery is. ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यू आर ऑल इन दी, मतलब वेरी यूथ एज में आप सब लोग हैं, और मे बी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर वी कीप स्विचिंग, समटाइम्स
सम ऑफ योर फ्रेंड मे ट्राई टू डू फ्रीलांसिंग ऑल्सो। तो फ्रीलांसर्स के साथ बहुत है ऐसा, कुछ आपको क्विक फिक्स इजी मनी कोई ऑफर करता है, सर्टेन एड्स आते हैं, आप उसमें पढ़ते हैं, शुरुआत में आपको पैसा भी मिलता है, बट अल्टीमेटली कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, योर वल्नरेबिलिटी इज टैप्ड, और फिर आपके साथ इस तरह की साइबर स्लेवरी भी हो सकती है। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर। तो आपको कभी भी किसी जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यू प्लीज़ वेरीफाई इट, और इंश्योर करें कि वो ऑथराइज्ड एजेंट हो, या फिर वही कि किसी अनवेरीफाइड एड्स को आप विश्वास ना करें। नेक्स्ट, APK स्कैम वी ऑल नो कि मतलब अभी रिसेंटली बहुत चल रहा था कि अनवेरीफाइड ऐप्स, मतलब APK जो बेसिकली एंड्रॉयड बेस्ड ऐप का स्ट्रक्चर है, वो आपको कोई भेज रहा है, यू डाउनलोड इट, और फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि इट विल कैप्चर योर इन्फॉर्मेशन और मे बी ल्यूर यू टू गिव इन दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली नवंबर जनवरी में शादी का सीज़न था, तो मैरिज कार्ड और APK टाइप चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। तो बेसिकली APK स्कैम में क्या था कि इफ़ यू आर यूजिंग एन एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, तो वो APK इज़ अ फाइल ऑफ दैट ऐप, वी ऑल नो। तो वो ऐप हम डाउनलोड करते हैं, फिर और कुछ खुलता है एंड यू शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन दैट। ये APK वाली चीज़ जो है दैट गोज़ टू इन्वेस्टमेंट स्कैम ऑल्सो, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, जो मैं आगे बात करूँगा कि somebody इज़ पेइंग यू हाई रिटर्न्स, अनयूजुअली हाई रिटर्न्स, कि आपको मैं 100% रिटर्न देता हूँ, आपका जैसे आप लोग सभी जानते हैं 21 दिन में पैसा डबल टाइप। तो वो करने के लिए वो एक सोफिस्टिकेटेड ऐप बना के रखते हैं विच इज़ नॉट वेरीफाइड, खुद ने बना के रखी हुई, इट इज़ नॉट अपलोडेड ऑन एनी ऑफ द ऐप स्टोर, मे बी एप्पल ऐप स्टोर और गूगल का प्ले स्टोर पे कहीं पे भी नहीं है। एंड देन यू डाउनलोड इट, फिर उसमें आपका कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, फिर जब आप उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें या ज़्यादा पैसा डाल दें, और फिर वो ऐप एकदम से काम करना बंद हो जाएगी, वो आदमी भाग जाएगा और यू विल रियलाइज़ कि यू हैव बीन स्कैम्ड। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। नाउ इफ़ यू कैन सी दी चैट, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी ने एक CSC government.official करके एक APK फाइल भेजी है, उसमें नीचे बंदे ने रिप्लाई किया है कि ये क्या है भाई, आई एम ऑन एन आईफोन, APK एंड्रॉयड का होता है, गो स्कैम एन एंड्रॉयड पर्सन। तो मतलब दैट इज़ वेरी, अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के अवेयरनेस के लिए भी लिखा हुआ है या मे बी रियल है, बट इसमें क्या काम आया, इट इज़ अ कॉमन सेंस, है ना, कि यू नो कि APK फाइल्स वर्क ऑन एन एंड्रॉयड फ़ोन ओनली, वो आईफोन पे काम नहीं करती हैं। और एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए सिक्योरिटी फीचर ये भी है कि एप्पल के जितने भी फ़ोन्स और डिवाइसेस है उसमें आप बाहर से थर्ड पार्टी ऐप्स डाल के यू कैन नॉट इंस्टॉल देम, तो दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट फीचर यू गेट वाइल यूजिंग एप्पल फ़ोन्स, बट एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आप दिमाग लगा के खुद ऑब्जर्वेंट रहकर कैसे अपने आप को स्कैम होने से बचा सकते हैं। बाकी आजकल टेलीग्राम वगैरह भी, उसमें भी बहुत सारे ऐप्स हैं, मे बी समबडी कोई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में फंस रहा है, या फिर कोई गेमिंग APK इस तरह का डाउनलोड करता है, कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो एप्पल ऐप स्टोर पे नहीं रहती हैं, जिसमें प्रो फीचर होता है, तो उनका APK इधर उधर घूमता रहता है। तो यू शुड बी वेरी विजिलेंट वाइल डाउनलोडिंग एनी APK फाइल, मतलब मोस्टली यू शुड ट्रस्ट दी गूगल प्ले स्टोर और अपना जो भी एप्पल का ऐप स्टोर है। नेक्स्ट, अदर सोशल मीडिया फ्रॉड्स में यू कैन सी साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, मतलब दिस इज़ वेरी बेसिक, जो सब लोगों के साथ आपने देखा होगा, जब से हम सोशल मीडिया चला रहे हैं तब से इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मतलब वी ऑल हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, वी आर वेरी इमेज कॉन्शियस, फिर उसमें हमको अपनी इमेज किस तरह से बनानी है, देयर विल बी सम एजेंडा जो आपको नीचे करने की कोशिश करेगा, वी ऑल सी दैट हैपनिंग। कोई भी ज़्यादा फेमस होता है, देयर इज़ अ सोशल मीडिया टीम उसके एनिमीज़ की जो पोस्ट अ नेगेटिव कंटेंट, उसको बुली करने की कोशिश करते हैं। देयर विल बी मैनी लेडी इन्फ्लुएंसर्स जिनको कुछ मलाइन करके, देयर इज़ अ सर्टेन टीम जो बैठी हुई रहती है जिसका काम यही है, मतलब कि वो नेगेटिव कंटेंट कैसे प्रमोट करें, मे बी ऑन इंस्टाग्राम, मे बी ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और विच इज़ नाउ एक्स। और साइबर स्टॉकिंग तो वी नो, मतलब वेरी बेसिक, कि लोग आप लोगों की प्रोफाइल में जाके दे स्टॉक यू, मे बी ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू ओवर फोन। तो इस सब चीज़ों में सोशल मीडिया रिलेटेड में एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि दैट इज़ वेरी कस्टमाइज्ड, मतलब जैसे कोई भी आदमी है, जैसे मैं हूँ मान लीजिए,
तो मैंने कुछ मेरा ऐसा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाल रखा है, मे बी ऑन फेसबुक और मे बी ऑन एक्स, मे बी ऑन इंस्टाग्राम। जैसे मे बी आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट की फ़ोटोज़ डाल रखी होगी। मे बी आई लाइक लिसनिंग टू अ पर्टिकुलर आर्टिस्ट और मे बी सम सॉन्ग्स। तो वो लोग क्या करते हैं कि दे स्टडी माई प्रोफाइल, दे आइडेंटिफाई माई इंटरेस्ट्स एंड देन दे ट्राई टू टारगेट यू। जब वो आप लोगों को टारगेट करेंगे, इट फील्स वेरी पर्सनलाइज्ड, है ना। वो जैसे मान लीजिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो दे विल कम अप विद समथिंग कि ये वाला बैट है, या वाला ये वाला किट है, या ये इस मैच के टिकट्स हैं, मैं आपको बहुत सस्ते में दे सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगेगा, मुझे वो स्कैम नहीं लगेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड। मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे बारे में इस तरह से जानता है। और कभी कभी मेरे इमोशंस रन हाई हो जाएंगे मेरे दिमाग के ऊपर। तो सोशल इंजीनियरिंग इज़ दिस कि वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, उसको यूज़ करके दे विल क्रिएट अ पर्टिकुलर स्कैम फॉर यू, वेरी कस्टमाइज्ड, है ना। किसी एक जेन्युइन ईमेल से आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, एंड देन दे विल ट्राई टू स्कैम यू। तो माई एडवाइस फॉर यू ओवर सोशल मीडिया इज़ कि फर्स्टली देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट, कि आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल है। तो आई थिंक वॉट यू कैन डू इज़ कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट जितना कम कर सके उतना करें। आप लोगों के पास इतने पावरफुल टूल्स नहीं होंगे कि आप अपना, मतलब, पर जो लोग बैठे हैं बाहर, मे बी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या और लोग हैं, ओपन सोर्स जो हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, उस इन टूल्स होते हैं, बहुत सारा डेटा स्क्रैप करके इधर उधर से लोग ले आते हैं। तो वॉट यू कैन डू कि मेरा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे फ्रीली इतना अवेलेबल नहीं हो, तो फॉर द अकाउंट्स दैट वी यूज़ मे बी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्राई टू कीप इट प्राइवेट। मतलब अनलेस आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिसमें आपको रीच चाहिए लोगों की, यू वांट पीपल टू फॉलो यू, अगर इस तरह की चीज़ है तो इट कम्स विद मतलब वल्नरेबिलिटीज़ ऑल्सो, ठीक है। आप जितना इन्फॉर्मेशन अपना इंटरनेट पे डालेंगे उतना यू बिकम वल्नरेबल। आपका फ़ोटो भी है, इवन फ़ोटो आप देखिए कि पहले फेसबुक हम चलाते थे तो यू कुड किसी भी फ़ोटो को हम एनलार्ज करके देख लेते थे, उसको डाउनलोड भी कर सकते थे। पर धीरे धीरे जब उसका मिसयूज़ होना चालू हुआ तो आपने देखा होगा कि यू कुड कीप योर डीपी, और जो आपका प्रोफाइल था उसको हम लॉक कर सकते थे, ये फीचर आया। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी सेम हैपन, मतलब वो शुरुआत से ही कि यू कैन कीप योर प्रोफाइल प्राइवेट और ओपन, इस तरह से। तो जितना इन्फॉर्मेशन आप जितना ऑनलाइन जितना कम रखेंगे उतना यू बिकम लेस वल्नरेबल, है ना। तो अपनी वल्नरेबिलिटी घटाने का यही तरीका है कि अपना डिजिटल फुटप्रिंट आप कम कर सकते हैं, खास करके सोशल मीडिया पे, बिकॉज लोग, मतलब टीम्स बैठी है, हज़ारों लाखों लोग बैठे हुए हैं आप लोगों को स्कैम करने के लिए, और दे ऑल वांट कि आप कहाँ से गलती करें, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दे दें उनको ऑनलाइन ताकि वो आपको स्कैम कर लें। तो व्हाट यू कैन डू इज़ टू कीप योर डिजिटल फुटप्रिंट मिनिमम, और कीप योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स लॉक्ड और प्राइवेट, और मतलब वेरी केयरफुली आपको किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है तो डू दैट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, आइडेंटिटी है फोटो मॉर्फिंग, मैंने जैसे बताया, फ़ोटो को यूज़ करके, अब आपका अगर फ़ोटो ऑनलाइन अवेलेबल है तो समबडी कैन मॉर्फ इट वेरी इजीली। पहले तो मे बी लोगों को फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना पड़ता था, बट नाउ देर इज़ इन AI। आजकल तो सब AI पे अवेलेबल हैं, दे आर सो मैनी टूल्स ऑन AI। मैं फ़ोटो डालूंगा, आई विल राइट अ प्रॉम्प्ट कि मेरे को इस तरह की फ़ोटो बना के दे दो इसका, एंड ही विल डू दैट फॉर यू, कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। तो जस्ट इंश्योर कि जितना डेटा आपका कम से कम अवेलेबल हो उतना ज़्यादा ही आप सिक्योर्ड हैं ऑनलाइन, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे मैंने काफ़ी सारा इसमें कवर किया है कि आप पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज कर सकते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ समथिंग टू बी मोर सिक्योर्ड। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, खास करके गूगल ऑथेंटिकेटर इज़ देयर। तो आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी जनरली जब आप लॉगिन करते हैं तो यू डू अ पासवर्ड, बट किसी थर्ड ऐप से, वो थर्ड ऐप से आप लिंक करेंगे, ही विल, दैट ऐप विल जनरेट अ कोड, उस कोड को आप डालेंगे, देन देर इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस टू लॉग इन। तो इट comes with an extra security or security feature. So if possible, try to use that 2 factor authentication. Other points I think I have covered. Next, financial frauds, उस तरह के साइबर क्राइम फ्रॉड्स जहाँ पे आपका पैसे का लॉस हो रहा है, देयर इज़ अ मॉनेटरी लॉस। और मैंने जैसे पहले बताया कि इस लिस्ट में 20 लिखे हुए हैं, पर आई थिंक 400 और तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं,
और हो रहे होंगे या होने वाले हैं, वी डू नॉट नो। ठीक है, जो लोग जिसके पास टाइम है ये सब करने का, और द पर्सन हु हैज़ क्रिएटिविटी, वो कुछ भी करेगा, मतलब अलग अलग चीज़ें आपके पास आएंगी, आप देखोगे। तो दिस इज़ अ वेरी, मतलब दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये 20 तरह की चीज़ें हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट वंस आई विल कवर। नेक्स्ट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्कैम, मतलब क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं जो आप लोगों को बोलते हैं कि भाई अपना पैसा एफडी में मत डालो, म्यूचुअल फंड में डालो। ठीक है, तो अवेयरनेस इन जनरल बढ़ रही है, पीपल हु आर ओपनिंग देयर डीमैट अकाउंट्स इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। मतलब इवन अ 13 और 15 ईयर ओल्ड हु गेट्स अ 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ पॉकेट मनी इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इट इन म्यूचुअल फंड्स, है ना। तो इस तरह का सिनेरियो अभी डेवलप हो रहा है। तो मोस्टली जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो यू लुक फॉर एवेन्यूज़ कि अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो जब लोग ज़्यादा लोग ढूंढेंगे तो ऐसे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा डेवलप होगी। तो उन लोगों को दिखेगा कि आप 500 रुपये डालो, मान लीजिए कोई 15 ईयर ओल्ड है, 17 ईयर ओल्ड है, जिसको इंटरनेट चलाना आता है, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, और उसको एक ऐसा ऐड दिखता है कि यार 1000 रुपये डालो, अभी मैं परसों पे 3000 रुपये तुमको देता हूँ। तो उसने एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया। ठीक है, शुरुआत में व्हाट हैपेंस कि टू जनरेट क्रेडिबिलिटी या टू जनरेट ट्रस्ट, होता क्या है कि आप 1000 रुपये डालेंगे, ही विल गिव बैक यू 1200। ठीक है, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि नहीं यार दिस इज़ अ जेन्युइन ऐप। फिर वो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहता है, 1000 से 2000 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख तक पहुंच जाता है, जैसे जैसे आपको शुरुआत में रिटर्न बनने पड़ते हैं। और एक बार जब अमाउंट बड़ा हो जाता है एंड सडनली ही डिसअपियर्स, और यू रियलाइज़ कि मेरा पैसा गया, है ना। और इस तरह के नॉट ओनली वाया मतलब APK apps, but also through there are many social media accounts और ग्रुप्स। टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें आपका कोई फ्रेंड आपको ऐड कर लेगा। वो कौन से किस तरह के ग्रुप्स हैं? फाइनेंशियल ग्रुप्स जो आपको कोई टिप देते हैं कि यार इसमें पैसे डाल दो, 10% बढ़ने वाला है, 5 बढ़ने वाला है, इसमें पैसे डाल दो, उसमें पैसे डाल दो। तो शुरुआत में मे बी आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, फिर मे बी इट मे बी आ स्कैम ग्रुप, आप लोगों को पता नहीं है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन द सेंस इस तरह में ऐसा है कि वाइल ट्रेनिंग आई इन्वेस्टिगेटेड अ सिमिलर इंसिडेंट, जिसमें क्या हुआ कि वेरी स्मॉल कि यूट्यूब पे देयर वाज अ वीडियो। मान लीजिए कि यू आर अ पर्सन जिसको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जिसको हाई रिटर्न्स चाहिए, तो किसी एक बंदा जिसको स्कैम करना था, ही पुट अप अ वीडियो ऑन अ यूट्यूब चैनल कि ऐसा ऐसा है और आप इस नंबर पे मुझे कॉल करो, आपका रिटर्न इतना इतना मैं बढ़ा के दूंगा, और जो डिस्क्रिप्शन है वो बायो में है। तो उसने वीडियो के बायो में जाके वो लिंक पे क्लिक किया, इट गॉट डायरेक्टेड टू अ वेबसाइट। उस वेबसाइट पे आपने क्लिक किया, एक APK ऐप अपने आप डाउनलोड हो गया, आपने उस डाउनलोडेड ऐप में फिर अपना इन्फॉर्मेशन को शेयर किया और उसी में ही आपने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू किया। तो दिस हैपेंड इन वन ऑफ द केसेस आई इन्वेस्टिगेटेड, इट हैपेंड थ्रू यूट्यूब। तो ऐसा हुआ, फिर मतलब अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज़ उसका मतलब चला गया था उसमें। उसने अपना पैसा ही नहीं, अपने बेटे के नाम से, अपने कोई भाई के नाम से पूरा इकोसिस्टम उसने अपना बना लिया, और टोटल 10 से 15 लाख रुपए ही गॉट स्कैम्ड। तो मतलब, और उसमें ऐसा होता था, आपको एंगेज करते रहते थे वो, दे विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डालेंगे कि आज आप 500 रुपये डालते हैं तो आपको एक बोनस मिलेगा। मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी बना रहे हैं, मतलब अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं, आपको एक बोनस मिलेगा, फिर वो बोनस का एक फाइल आएगा, वीडियो आएगा, आपको 500 रुपये बोनस मिल गया, इस तरह से। तो दे ट्राई टू एंगेज विद यू, और एंगेज कर करके आपका अमाउंट बढ़ाते रहते हैं, और एक दिन दे डिसिपेयर्ड एंड देन यू रियलाइज़ कि हमारे साथ ऐसा स्कैम हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट स्कैम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर ऑल आर अर्निंग, और करंटली जिस तरह का इन्फ्लेशन है, जिस तरह से मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं, वी ऑल वांट आवर मनी टू गेट डबल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो दिस इज़ समथिंग विच इफेक्ट्स एवरीबडी ऑफ अस, मतलब सबको इफेक्ट करता है। तो जस्ट इंश्योर कि जब भी आप पैसा डालें कहीं पे, तो इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ द एजेंट्स जिससे आप बात करें वो सेबी रजिस्टर्ड हों, या फिर ऐप्स जो वेल नोन ऐप्स हैं जैसे ज़ीरोधा ग्रो टाइप चीज़ें हैं। आप सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स या ट्रस्टेड एजेंट्स के साथ ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कस्टमर केयर फ्रॉड
आप मतलब मोस्टली फ्रॉड्स ऐसे हैं जो आप नाम देख के आप पता लगा सकते हैं। तो मोस्टली व्हाट इज़ हैपनिंग कि आपका एयरटेल का सिम काम करना बंद कर गया और XYZ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपको कस्टमर केयर की सर्विस चाहिए। तो मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड करना बंद हो गया, तो आपने गूगल किया कि भाई इसमें मेरे को फ्रॉड हुआ है, इसका कस्टमर केयर का नंबर क्या है। तो एक कस्टमर केयर का नंबर आया विच इज़ नॉट ट्रू। फिर आपने उसके साथ एंगेज करना चालू किया, उसने आपकी डिटेल्स मांगी एंड देन यू गॉट स्कैम्ड। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मोस्टली ट्राई टू अवॉइड गूगलिंग। और अब कभी भी आपको कस्टमर केयर का नंबर चाहिए तो गो टू द वेरीफाइड वेबसाइट, जो उसकी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, वहीं से आप उसका ईमेल और फ़ोन नंबर उठाने की कोशिश करें। बट डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट गूगल, क्योंकि गूगल क्या है कि आई थिंक मैनी यू वुड नो, जो सर्चेज आप देखते हैं इट इज़ ऑल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके एक फील्ड चलती है, SEO कहते हैं उसको। तो SEO इज़ बेसिकली कि जब आप किसी क्वेरी या कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं तो कौन से रिजल्ट्स ऊपर आएंगे, तो कोई भी उसमें पैसा डाल के अपना रिजल्ट ऊपर लेकर आ सकता है। तो मतलब दैट इज़, ये मतलब लेजिट चीज़ें होती है इस तरह की। तो डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट गूगल के आंसर्स और ऑलवेज गो टू दी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स इन केस यू रिक्वायर एनी सर्विस। उसके बाद डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, मतलब जनरली क्या होता है कि ATMs पे स्किमिंग मशीन्स लगा के रखते हैं लोग। जो आपने देखा होगा, आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, दैट इज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। तो स्किमर ऐसी मशीन होती है दैट ट्रैप्स दैट डेटा, वो उस डेटा को कैप्चर करता है। और जनरली आप कभी भी ATM में जाते हैं तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि एक्स्ट्रा कुछ उसमें स्किमर ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो आप उसके थ्रू अपना डेबिट कार्ड पास करते हैं, इन्फॉर्मेशन गेट्स कैप्चर्ड। और कभी कभी हम तो यंग एज में तो वी विल नॉट अलाउ, जब भी हम ATM से पैसा निकालने जा रहे हैं कि और किसी स्ट्रेंजर का प्रेजेंस हो, पर मे बी आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है। जब वो ATM मशीन में जाएँ, कोई एक बंदा वहाँ खड़ा रहता है तो बोले कि लाइए आंटी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, वो उनकी हेल्प करके और उनका कार्ड डाल के उनका पिन विन देख ले, कभी आगे जाके उनको उनका कार्ड ले ले, पिन पता लग जाए और the person can get scammed. So mostly in our age we would not allow, I think we are all this much aware enough, but this can happen with your parents or grandparents. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से आप बच सकते हैं। किसी स्ट्रेंजर के सामने यूज़ ना करें। और स्पेशली अनयूज्ड फीचर्स बहुत सारे होते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में आजकल। जैसे इंटरनेशनल फीचर्स मिलते हैं कि आप इंटरनेशनली यू कैन यूज़ दैट डेबिट कार्ड, मोस्टली वी कीप इट ऑफ। पर कभी ऐसा हो, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, तो उस फीचर के प्रिटेक्स्ट पे आप लोगों को बाहर से कॉल आता है कि मैं आपका इंटरनेशनल वाला चालू कर देता हूँ, ऐसा फीचर है आपके क्रेडिट कार्ड में, आप चालू क्यों नहीं करवा लेते हैं इसको। तो इस तरह के फीचर्स आते हैं बहुत सारे। तो आजकल सभी बैंकिंग, सभी ऐप्स हैं पूरी, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कभी भी फ्री टाइम में यू गो एंड एक्सप्लोर कि किस तरह के फीचर्स आपके डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, और ताकि अब इस तरह का स्कैम आपके साथ ना हो। और मे बी पॉसिबल तो आप उसको ऑफ करके भी रखें इस तरह के फीचर्स को। जब आप अनअवेयर होंगे तभी आपकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के सामने वाला आपको स्कैम कर पाएगा। अदरवाइज यू नो कि नहीं यार मेरा इंटरनेशनल वाला क्रेडिट कार्ड नहीं है या डेबिट कार्ड नहीं है, तो यू विल नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। नेक्स्ट, मनी म्यूल्स, एज द वर्ड से, टॉप वर्ड से, म्यूल क्या होता है? म्यूल मतलब खच्चर जो सामान लाद कर लेके जाता है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ मिडल मैन, जिसको शायद पता है या शायद पता नहीं है कि वो किसी इलीगल मनी ट्रेल में इन्वॉल्व है ना। तो जो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं इस तरह के लोग, जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को ल्यूर करेंगे कि यार तुम ये वाला ट्रांजैक्शन कर लो, या फिर जैसा मैंने व्हाट टू डू में लिखा है कि वो आपको बोलेंगे कि यार मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, तो ये जो 50,000 रुपये है ये मेरे अपने अकाउंट में 2 दिन रख, और तेरे को इसके ऊपर 1000 रुपये मैं दूंगा। तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग कि इलीगली ऑब्टेन्ड फंड्स, जो इलीगली ऑब्टेन्ड मनी है, मे बी हवाला मनी होगा या और किस तरह का मनी, वो आपका अकाउंट यूज़ करके इट इज़ बिंग पार्क देयर, फिर वो वहाँ से उठा के किसी और जगह ले जाएगा। तो जब ये चीज़ इन्वेस्टिगेट होगी तो ऑल दी अकाउंट नंबर विल कम कि पैसा कहाँ से क्या, पूरा फाइनेंशियल ट्रेल बनेगा। तो चाहे आपको पता नहीं होगा, चाहे आपका इंटेंट नहीं होगा, बट स्टिल यू विल गेट फ्रेम्ड इनटू दैट केस, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा फ्रीलांसिंग या इस तरह का काम करते हैं, या कोई भी ऐसे आदमी को जानते हैं जो आपको आगे से आके बोलता है कि यार ये
थोड़े से पैसे हैं कमीशन के बेसिस पे अपने अकाउंट में रख ले, तो प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप अगेन। ये मनी म्यूल्स जैसा शब्द है कि दे यूज़ यू मे बी नोइंगली और अननोइंगली। आप किसी एक क्राइम में, बड़े क्राइम में मे बी इन्वॉल्व हो सकते हो। मे बी इट मे बी अ मनी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ड्रग ट्रैफिकिंग, मे बी फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यू नेवर नो। बट वो फुटप्रिंट, आपके अकाउंट का फुटप्रिंट विल गेट कैप्चर्ड कि 2 दिन के लिए पैसा आपके पास था, पुलिस विल कम इन, आपको उठा लेगी पुलिस। तो बी वेरी अवेयर कि आप अपना पर्सनल बैंकिंग अकाउंट जो है वो किसको यूज़ करने दे रहे हैं और किस तरह का ट्रांजैक्शन उसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिमोट एक्सेस फ्रॉड, आई थिंक दिस इज़ दी मोस्ट रिलेवेंट टू यू गाइज। एनी डेस्क सब जानते हैं, और किसी भी तरह का चीज़, क्योंकि आप अहमदाबाद में काम करते हैं, देयर विल बी ऑफिस इन बैंगलोर और मे बी इन पुणे, जहाँ से आप लोग काम करते हैं, वहाँ का कोई सपोर्ट सिस्टम होगा जो आपको सपोर्ट देता होगा। कोई मे बी थर्ड पार्टी सपोर्ट सिस्टम्स होंगे जो आपके आईटी रिलेटेड सर्विसेज आप लोगों को देते होंगे। तो बी वेरी अवेयर कि आप किस आदमी को अपना रिमोट एक्सेस दे रहे हैं, मोस्टली एनी डेस्क यूज़ करके। और क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप उसको अपना कंप्यूटर देंगे, यू विल लूज़ द एक्सेस, और फिर कुछ भी ऐसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी ही कैन सी एंड ही कैन यूज़ इट टू इन एनी क्रिमिनल एनी क्रिमिनल परसूट्स। तो आप चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं अवेयर रहें, और व्हाट यू कैन डू, बी वेरी श्योर कि सामने वाला कौन है, बी क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक कि आप किसको अपना रिमोट एक्सेस दे रहे हैं अपने कंप्यूटर का। एंड उसके अलावा जब भी आप अपना रिमोट एक्सेस दे रहे हैं, और अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर रखा है या सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन कर रखा है, तो ट्राई टू लॉग आउट फ्रॉम ऑल दैट, और उसके बाद आप अपना रिमोट एक्सेस दें। आई थिंक इतनी बड़ी कंपनी जब रहती है तो मोस्टली देयर इज़ एन आईटी सिक्योरिटी टीम विच टेक्स केयर ऑफ दैट, बट यू शुड ऑल्सो बी वेरी अवेयर कि आप लोगों को क्या करना है एंड व्हाट कैन हैपन इफ़ यू आर नॉट अवेयर। नेक्स्ट, सेक्सटॉर्शन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि यू डू नॉट, इसका सिर्फ एक इलाज है, एंड मतलब मे बी 2 एडवाइसेज आई वुड लाइक टू गिव। फर्स्टली कि कोई भी आप अननोन वीडियो कॉल ना उठाएं, एंड सेकेंडली कर्ब द डेस्परेशन, जैसे मैंने बोला। तो प्लीज़ बी वेरी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि बहुत ही ग्रेव हो जाती हैं ये चीज़ें, बिकॉज मे बी आपका कुछ प्राइवेट मोमेंट गेट्स कैप्चर्ड, और फिर यू बिकम वेरी इमेज कॉन्शियस। फिर वो आपके क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो वो आपका किसी आपके इस रिलेटेड सरनेम वाले आदमी का रेफरेंस देके बोलेगा कि अगर तुमने ये नहीं किया, मान लीजिए आपका नाम अजय गुप्ता है, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में, इंस्टाग्राम में समबडी कॉल्ड मे बी अशोक गुप्ता फॉलोज यू, तो ही विल से कि तुमने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं अशोक गुप्ता को भेज दूंगा, है ना। तो आप जानते हो कि यार ये मेरे चाचा का लड़का है या भाई है या मेरे पापा ही हैं, है ना। तो बट ही विल यूज़ दैट वल्नरेबिलिटी, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फंसा देगा। एंड जब इतना आदमी डेस्परेट हो जाता है तो ही विल ओनली थिंक कि यार तू जितना पैसा है ले, पर ये डिलीट कर, बट ही विल नॉट डिलीट, है ना। वो बार बार आपको स्कैम ही करता रहेगा और पैसे मांगता रहेगा। तो देर इज़ ओनली वन थिंग जिससे आप रुक सकते हैं कि यू नेवर पे मनी, उसको पैसा देना ही नहीं है, सिंपली इग्नोर। क्योंकि जितना आप उससे ज़्यादा बात करोगे उतना ही वो आपको एंगेज करेगा, उतना ही आपके फियर्स पे प्ले करेगा, और उतना ही आपको डराता जाएगा। और जितना आप ज़्यादा डरोगे उतना ज़्यादा आप डेस्परेट होगे, उतना ज़्यादा यू विल बिकम रेडी टू पे हिम। तो प्लीज़ बी वेरी अवेयर अबाउट दिस, एक्सटॉर्शन इज़ वेरी कॉमन। नेक्स्ट, CCTV फुटेज लीक, दिस इज़ मतलब मोस्टली अवेयरनेस के लिए है ये। अभी 2-3 महीने राजकोट में ऐसा हुआ था, देयर वाज अ मेटर्निटी हॉस्पिटल जिसके ऑनलाइन वीडियोस, फीमेल वार्ड के ऑनलाइन वीडियोस इन अ मेटर्निटी हॉस्पिटल इन राजकोट गॉट लीक्ड, और वो ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप्स पे फैल रहे थे। मतलब देवर टेलिंग कि आप इतना पैसा दो तो यू विल गेट दी वीडियो एक्सेस, कि इस तरह का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। तो दिस इज समथिंग वी नेवर मतलब इमेजिन्ड कि हमारा CCTV भी हैक हो सकता है, बट इट हैपेंड हियर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने मतलब सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए, आपका IPs जो थे CCTV आपके सिस्टम के, दे वर नॉट सिक्योर्ड, और उसके बाद मे बी पासवर्ड्स वर वेरी जेनरिक, जिनको हैक करना बहुत ज़्यादा आसान था। तो दे वर एबल टू गेट दैट वीडियोज़ फ्रॉम दी CCTV DVR ऑनलाइन, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड रिमोटली। मतलब जो बंदा इन्वॉल्व है वो राजकोट का भी नहीं है, द पर्सन्स हु वर कॉट वर फ्रॉम महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र से बैठे बैठे कोई आपका सीसीटीवी हैक कर ले और किसी भी तरह का वीडियो निकल जाए, दिस इज़ ओनली फॉर योर अवेयरनेस कि मतलब इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो दिस हैज़ हैपेंड, तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। तो अगेन जितना ज़्यादा सिक्योर्ड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उतना ही बेहतर है। फिर जनरल चीज़ें आई थिंक बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, वी डेली सी दैट कि किसी को भी अपना पिन नहीं देना है और कोई भी अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट हमें करना है दैट इज़ थ्रू इंश्योर कि वो हमेशा सेबी सर्टिफाइड एजेंट्स के थ्रू हो, सेबी सर्टिफाइड ऐप्स के थ्रू हो और ऐसे लोगों के थ्रू हो जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिनको हम फिज़िकली मिले हुए हैं, ताकि फाइनेंशियली ऑनलाइन आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। कभी भी ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि लोग आपको क्यूआर भेजते हैं, तो मतलब कभी भी क्यूआर हमेशा देने के लिए, हम पैसा देने के लिए यूज़ करते हैं, पर लोग आपको क्यूआर देते हैं कि इससे आपको पैसा मिलेगा भी सही। जनरली जो लोग नहीं जानते हैं, शुरुआत में जब यूपीआई आया था तो लोगों के साथ इस तरह का स्कैम हो रहा था कि देवर उनको क्यूआर कोड दिया गया था कि तुम इस पर स्कैन करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा। उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, तो उन्होंने स्कैन कर दिया और उनके अकाउंट में से पैसा निकल गया। तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ व्हाट हैपेंड कि कभी भी पैसा लेने के लिए क्यूआर की ज़रूरत नहीं है, देने के लिए क्यूआर की ज़रूरत है। तो दैट इज़ अ सिंपल थिंग, वेरी स्मॉल पॉइंट बट कैन सेव योर मनी। और उसके अलावा कभी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप पब्लिक वाईफाई से ना करें, मोस्टली एयरपोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशंस पे अवॉइड करें। और इसके अलावा देर इज़ समथिंग कॉल्ड जूस जैकिंग ऑल्सो, आई थिंक इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, कि जनरली क्या होता है कि दैट इज़ रिलेटेड टू डेटा थेफ्ट मेनली, कि और टू इंसर्ट एनी मालवेयर इन योर स्मार्टफोन। जब भी आप एयरपोर्ट्स पे या फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, यू सी की चार्जिंग पोर्ट्स रहते हैं वहाँ पे। तो चार्जिंग पोर्ट में डायरेक्टली देयर इज़ अ USB-A का जो वो स्लॉट रहता है पोर्ट, तो उसमें आप अपना सीधा केबल लगाते हैं और यू चार्ज योर फोन, बट यू डू नॉट नो व्हाट इज़ बिहाइंड दैट। उसमें जनरली कुछ ऐड वगैरह चल रहा रहता है। तो दैट इज़ अ टर्म कॉल्ड जूस जैकिंग, जिसमें बेसिकली जब हमको हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना होता है फ़ोन को, स्मार्टफोन को, तो व्हाट वी डू कि हम CPU के अंदर उस केबल को लगाते हैं एंड देन वी पुट वन एंड इनटू आवर फोन। तो सेम कैन हैपन इन दैट सिस्टम ऑल्सो। मे बी वो आपका पूरा डेटा निकाल ले, एनीथिंग, और कोई मालवेयर इंसर्ट कर दे। तो जनरली प्लीज़ अवॉइड, जब भी आपको फ़ोन चार्ज करना हो तो टेक अ प्रॉपर, जो भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट होता है आपका, अडेप्टर होता है, अडेप्टर में आप अपना डेटा केबल लगाएं और उसके बाद अपना फ़ोन चार्ज करें। अवॉइड चार्जिंग स्टेशंस दैट आर अवेलेबल विद ओनली द पोर्ट, मतलब पूरा अपना 3 पिन वाला जो पोर्ट हो वहाँ पे आप अपना अडेप्टर के साथ उसको लेकर चार्ज करें। अवॉइड जिसमें आपको डायरेक्ट अपना केबल लगाना हो। ठीक है, नेक्स्ट। फिर लास्टली देर इज़ साइबर टेररिज्म। तो हमने फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में देखा, सोशल मीडिया फ्रॉड्स के बारे में देखा। साइबर टेररिज्म इज़ दी, इफ़ आई से इनफॉर्मली, बाप ऑफ ऑल दैट, कि समथिंग, एनी साइबर क्राइम जो हो रहा है दैट इज़ अफेक्टिंग आवर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज़ अ मतलब लीगल टर्म कि जितना भी हमारा, लेट से हमारे जितने भी नेशनल बैंकिंग के सिस्टम्स हैं, RBI का कुछ सिस्टम है, या फिर हमारे एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं जो कि क्रिटिकल है हमारी देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सोवरेनिटी को बचाने के लिए, तो दोज आर टर्म्ड एज, देयर इज़ अ प्रॉपर लीगल टर्म, और कुछ चीज़ें हैं विच आर डिफाइंड ऑलरेडी एज क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस पर कुछ ऐसा अटैक होता है दैट इज़ टर्म टू बी अ साइबर क्राइम। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा किसी भी कोई गवर्नमेंट साइट है जिस पे आपका डेटा है, मे बी कोई हेल्थ की वेबसाइट है जिस पे आपका पर्सनल डेटा है, वो हैक हो जाती है, आपका डेटा निकल जाता है। या फिर हमारी, जैसे बहुत ही कॉमन टर्म में हम कह दें कि हमारे न्यूक्लियर कोड्स अगर इधर से उधर हो गए, कहीं से भी हैक होकर, तो इस तरह का जो भी चीज़ होता है जो नेशनली हमारी देश की सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज़ साइबर टेररिज्म। तो मे बी दैट कैन हैपन थ्रू रैंसमवेयर अटैक्स। 3-4 साल पहले, इफ़ यू माइट हैव हर्ड, रैंसमवेयर आता था जिसमें कंप्यूटर यूज टू गेट लॉक्ड और वो बोलता था कि यू पे मी इन क्रिप्टो, फिर ये आपका जो डेस्कटॉप है या आपका फ़ोन है, इट विल गेट अनलॉक्ड। तो दैट इज़ रैंसमवेयर अटैक, जो आपसे रैंसम मांग रहा है एंड देन इट विल ओपन योर फोन और मे बी योर PC। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो भी हमारे, मतलब नेशनली जो भी हमारी कंट्री के लिए हानिकारक है, दैट इज़ ऑल अबाउट साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट। तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं। जनरली मैंने बताया जैसे कि हम ऑनलाइन अननोन लिंक कुछ भी यूज़ ना करें। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ टूल्स जिसमें आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल चेक फिश करके एक ऑनलाइन टूल है, आप देख सकते हैं, उसमें आप अपना ऑनलाइन लिंक जो भी है जिसकी वेरासिटी आपको वेरीफाई करनी है कि ये सही है कि नहीं, यू कैन गो एंड पुट इट दैट। तो अगर कुछ ऐसा होगा अपने डेटाबेस में से, वो फैच करके आपको बताएगा कि दिस इज़ अ जेन्युइन लिंक और नॉट, कि ये स्कैम वाला लिंक तो नहीं है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, यू नेवर पे देम, अगर इन केस आप कभी भी स्कैम होते हो या आपका फैमिली में से कोई स्कैम होता है। फिर मिनिमाइज योर डिजिटल फुटप्रिंट, यूज़ प्राइवेसी ब्राउजर्स, मोस्टली वी यूज़ क्रोम, बट इन साइबर सिक्योरिटी पार्लेंस पीपल से कि आप क्रोम ना यूज़ करें, इधर यू यूज़ ब्रेव और मे बी ये फोकस होता है, फायरफॉक्स का फोकस आता है, तो पर्सनल के लिए, पर्सनल यूसेज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ब्रेव इज़ अ गुड ब्राउज़र, आई पर्सनली यूज़ दैट, और उसका एडेड एडवांटेज ये कि यू डू नॉट गेट एनी यूट्यूब एड्स, तो यूट्यूब प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड। इसके अंदर क्या है कि यू पुट योर ईमेल और यू कैन सी कि आपका ईमेल किसी डेटा ब्रीच के अंदर मेंशन्ड है कि नहीं। तो प्रीवियसली 4-5 साल पहले बहुत सारे डेटा ब्रीचेस हुए थे। जोमेटो का नहीं, आई थिंक डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था, जिसके अंदर सभी के फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेसेस सब लीक हो गया था। तो आप हैव आई बीन पॉन्ड में जाएंगे, अपना ईमेल डालेंगे, तो इट विल टेल यू कि कौन कौन से डेटा ब्रीचेस में आपका ईमेल फीचर करता है। और अगर आप बहुत टाइम से ईमेल यूज़ कर रहे हो तो मोस्टली इट विल बी देयर। अगर आपने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो यू विल फाइंड योर ईमेल, मेरा भी है। ठीक है, तो उसके अलावा मतलब दिस इज़ समथिंग। और फिर मोबाइल सिक्योरिटी के लिए आप देखें कि मोबाइल वी ऑल यूज़, तो जितना ज़्यादा हो सके अपना ओएस अपडेटेड रखें। उसके अलावा ऐप के बारे में मैंने आपको बताया। देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, एक संचार साथी ऐप करके होता है। तो व्हाट इज़ इन दैट, संचार साथी ऐप आप लोगों के लिए इस तरह से मददगार है कि कभी भी आपका फ़ोन मान लीजिए कि चोरी हो जाता है या गुम जाता है, तो आपको अपना IMEI ब्लॉक कराना है। तो किसी भी मे बी आप जब तो मोबाइल रहेगा नहीं, तो आप ऑनलाइन जाएं, CEIR, देर इज़ वन पोर्टल, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, या फिर आप संचार साथी भी लिखेंगे तो इट विल कम। उसमें आप जाके अपना बेसिक डिटेल डालें, तो यू रिपोर्ट बेसिकली कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, इस जगह से चोरी हो गया है, यू ब्लॉक माई IMEI। तो ताकि उस फ़ोन को अब और कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। जो आदमी उसको चोरी करके लेकर गया है, ही डज़ नॉट नो कि IMEI ब्लॉक हो गया है। तो व्हाट यूजुअली हैपेंस, हम कैसे मोबाइल को ट्रैक करते हैं कि उसको हम पहले ब्लॉक कर देते हैं, और फिर कोई मान लीजिए कोई चोर है जिसने उसके अंदर दूसरी आपकी सिम निकाल देता है वो, और वो कोई दूसरी सिम अगर उसके अंदर डालता है तो ही डज़ नॉट नो, सिम विल नॉट वर्क। बट एज सून एज वो उसमें सिम जो डालता है, उससे एक अलर्ट जनरेट होता है पोर्टल पे कि ये वाला नंबर जो है इस मोबाइल में डालने की कोशिश की गई है। देन वी सर्च हिम, उसका लोकेशन हम निकालते हैं, फिर दैट इज़ हाउ वी रिकवर द मोबाइल। तो दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, संचार साथी ऐप। इस पर आप जाके अपना मोबाइल फ़ोन अगर गुम गया है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, IMEI अपना ब्लॉक कर सकते हैं। और एक और इसमें फ़ीचर है कि आप अपना इसमें फ़ोन नंबर डालेंगे या आधार नंबर डालेंगे, तो इट विल ऑल्सो जनरेट अ लिस्ट कि आपके आधार नंबर या आपके नंबर पे कौन कौन सी फ़ोन नंबर्स रजिस्टर्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को पता नहीं लगता, ऐसा बहुत कॉमन भी है कि लोगों को पता लगता है कि यार मेरे नाम पे पता नहीं कितनी सिम किसने ले ली, कहाँ से ले ली। तो आप जाके वहाँ पे इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अपना आधार नंबर उसमें डालेंगे तो इट विल जनरेट अ लिस्ट कि कौन कौन से फ़ोन नंबर्स आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड हैं। आपको कुछ भी फिशी लगता है तो यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट। तो एक संचार साथी ऐप है। दूसरा इज़ अबाउट आधार ऐप। तो आधार इज़ वेरी बेसिक, सब लोगों का आधार कार्ड है। तो आधार में देर आर 2 बायोमेट्रिक्स जो आपके कैप्चर किए गए थे व्हेन यू फर्स्ट रजिस्टर्ड। एक तो आपका आईरिस स्कैन था और दूसरा आपका फिंगरप्रिंट वाला फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन था। तो दीज आर 2 बायोमेट्रिक्स टू इंश्योर कि आपके बायोमेट्रिक्स जो हैं वो गलत तरीके से कहीं यूज़ ना हो जाए, किसी स्कैम में ना हो जाए और वो यूज़ करके आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो यू डाउनलोड दिस आधार ऐप, आप इस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना आधार नंबर और यू गो एंड लॉक योर बायोमेट्रिक्स। तो आप उसमें जाके बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं, तो वो कभी मिसयूज़ नहीं होगा आपका। दिस इज़ अ फीचर दैट गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू यू। मोस्टली वी डू नॉट नो, बट यू कैन ऑलवेज गो एंड डू दैट फॉर एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर। एंड लास्टली इज़ मेंटेन साइबर हाइजीन। मोस्टली डेली लाइव्स में हम एक तरीके से हाइजीनिक रहते हैं, अपने आसपास सफाई रखते हैं, बट सिंस वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन साइबर स्पेस, तो वहाँ पे भी हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड साइबर हाइजीन। तो कीप दैट साइबर हाइजीन, डू नॉट बी मेसी रिगार्डिंग योर डेटा,
कीप इट वेरी सिक्योर, उसको ऑनलाइन आप कहीं भी ना डालें, जैसा जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ है इस बारे में, तो मेंटेन दैट साइबर हाइजीन। नेक्स्ट, लास्टली इज़ हाउ टू रिपोर्ट साइबर क्राइम। इतने सारे मैंने आपको टाइप्स बताए, इतने अलग अलग तरह के साइबर क्राइम बताए, पर आपके साथ कभी हो जाता है या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो जाता है, तो यू शुड गो cybercrime.gov.in, दैट इज़ द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उस पर आप अपना बेसिक एविडेंस डालिए कि आपके साथ क्या हुआ है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, फ़ोन पे किसी ने आपसे पैसा मांगा है तो उसका स्क्रीनशॉट डाल के बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। देन इट विल गो टू द रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन और वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू होता है। तो जस्ट टू मेक यू मतलब अवेयर अबाउट दी प्रोसेस कि पुलिस साइड में क्या प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए कि फ़ोन पे से आपने किसी को पे कर दिया जिसको नहीं पे करना चाहिए था, मान लीजिए आपका 50,000 रुपीज़ चले गए, तो फर्स्ट थिंग इज़, जैसा कि हमारे मोटर एक्सीडेंट्स में होता है, देयर इज़ अ गोल्डन आवर, कि जितना जल्दी उसको फर्स्ट एड मिल जाए उतना उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टेल हेयर कि देयर इज़ अ गोल्डन आवर। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी गवर्नमेंट को पता लगेगा, उतना जल्दी ही आप जिस अकाउंट में पैसा गया है वो ब्लॉक होगा और उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपने लेट रिपोर्टिंग करी, 2 दिन बाद रिपोर्टिंग करी, तो मोस्टली क्या होता है कि किसी ने आपसे 50,000 रुपये लिए अपने अकाउंट में, फिर वो फिजिकली एक ATM पे गया, पैसे निकाल के ले आया, उसका अकाउंट ज़ीरो है। तो अभी इस केस में अगर आप 2 दिन बाद रिपोर्ट करेंगे तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आपको पैसा रिफंड सरकार की तरफ से जब भी मिल सकता है जब उस अकाउंट में पैसा अवेलेबल हो। मान लीजिए कि आपके साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ है पर उस अकाउंट में 10,000 रुपये ही अवेलेबल हैं अभी, तो आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये ही मिल सकते हैं, और वो मे बी इसलिए हुआ हो कि उसने 40,000 रुपये फिर विड्रॉ कर लिए, ATM से विड्रॉ कर लिए। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिपोर्ट करें, उतना ही जल्दी सामने वाला अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और वो एक बार फ्रीज हो गया तो फिर उससे कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता है, फिर सामने वाला जाके ATM से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो बी वेरी मतलब इमीडिएट अपना एक्शन रखें कभी भी आपके साथ ऐसा होता है। और पुलिस साइड में रिफंड का प्रोसेस में एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या होता है कि जैसे ही आपने रिपोर्ट किया कि मान लीजिए आपका 50,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, इट कम्स टू लोकल पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस उस बैंक अकाउंट का पूरा जो NCRP पोर्टल है हमारा, उसका लॉगिन हमारे पास होता है, तो वी सी उसमें पूरा ट्रेल जनरेट हो जाता है कि ये जो अमाउंट है ये कौन कौन से अकाउंट से ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँचा है, दैट ट्रेल वी गेट। फिर जहाँ भी हमको सस्पिशियस लगता है कि मान लीजिए ये ट्रेल में पहली लेयर में ही है, जनरली क्या होता है कि जितनी लेट हम करते हैं उतनी लेयर बढ़ती जाती है ना, और जितनी लेयर बढ़ेगी उतना ज़्यादा इट विल बिकम डिफ़िकल्ट। मान लीजिए ये पैसा 50,000 रुपये में यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, और जितनी लेयर बढ़ती जाएगी इट विल इन्वेस्टिगेशन उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, रिफंड प्रोसेस भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हम उसको कर्व कर दें उतना इट बिकम्स ईजी फॉर द पुलिस टू गेट यू योर रिफंड बैक। और रिफंड का प्रोसेस क्या रहता है कि एक बार हमको अकाउंट का डिटेल पता लग गया, मान लो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत जल्दी रिपोर्ट कर दिया, 50,000 रुपये जो आपके गए थे वो अकाउंट में फ्रीज़ हो गए, अभी वो वहीं पे ही हैं। हमने बैंक से बात करी, बैंक ने बोला कि हाँ हमने अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है, और वो 50,000 रुपये वहीं पड़े। उसके बाद जिसका पैसा गया है, मान लीजिए आपका पैसा गया है, तो पुलिस आपको बुलाएगी एंड देन यू विल, एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, यू विल अप्लाई टू कोर्ट कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ था, ये पैसा है जो कि सीज मतलब ऑलरेडी फ्रीज़ हो गया है और हम कह रहे हैं कि आप इसको सीज़ कर दो। तो कोर्ट विल उसको सीज़ कर देगी मतलब एक तरह से, देन यू विल अप्लाई फॉर रिफंड, देन अगेन यू विल अप्लाई फॉर रिफंड कि इतना इतना पैसा था, इस केस में था, ये 50,000 रुपये मेरे गए थे, इस अकाउंट में पड़े हुए हैं, प्लीज़ मेरा रिफंड वापस कीजिए। फिर इट विल गो टू कोर्ट, फिर कोर्ट देखेगी, कोर्ट विल ऑर्डर कि हाँ ठीक है इसके साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ था तो इसको ये वाला पैसा वापस दिया जाए। इट विल डायरेक्ट टू दी बैंक, फिर बैंक के पास वो कोर्ट का ऑर्डर जाएगा, फिर बैंक विल टेक एक्शन ऑन दैट और फिर आपके ओरिजिनल सोर्स में वो पैसा वापस आएगा। तो जस्ट टू फॉर अवेयरनेस ऑफ योर, मतलब आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये है कि इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि पुलिस ही पैसा वापस कर देती है, मतलब कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, तो दैट्स वाई इट टेक्स टाइम ऑल्सो। और मोस्टली मतलब जो रिपोर्ट कर रहा है जिसके साथ क्राइम होता है उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो कितना जल्दी रिपोर्ट कर देगा, वो जितना जल्दी रिपोर्ट कर देगा उतना ही अमाउंट हम उसको ब्लॉक कर देंगे और उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपका पैसा वापस आ जाए। बट देयर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट ऑल्सो, और पहले ऐसा नहीं होता था जनरली इस प्रोसेस में, अभी FIR नहीं होती है, दिस इज़ ऑल ऑन मतलब कंप्लेंट नंबर बेसिस पे ही चलता है, FIR नहीं होती इन केसेस में जब भी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जो छोटे अमाउंट का है।
उसमें एफआईआर नहीं होती। पर पहले इस तरह से नहीं होता था, पहले कोर्ट यूज टू आस्क एफआईआर कि आप एफआईआर करो, फिर एफआईआर लॉन्च कराना भी अपने आप में एक टास्क है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया, गवर्नमेंट को पता लगता गया, तो इंटर स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन बढ़ता गया। इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, आप लोग इन्वॉल्व हैं जिनके साथ स्कैम हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसा होता गया तो सिस्टम भी एक इवॉल्व कर रहे हैं। नाउ इट इज़ वेरी स्मूथ, मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें आते जा रहे हैं विच आर मेकिंग इट वेरी ईजी टू गेट योर मनी बैक। जैसे जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन भी आप जाके देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ रिफंड्स भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे फ्रॉड अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एब्सोल्यूट अमाउंट, बट परसेंटेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज सब में अवेयरनेस आ रही, बैंक्स में अवेयरनेस आ रहा है, पुलिस में अवेयरनेस आ रहा है कि किस तरह से पैसे रिफंड करना है। तो ओवरऑल हमारा सिस्टम इवॉल्व कर रहा है एंड इट इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, ऑल थैंक्स टू दिस स्पेशल एजेंसी विच इज़ I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो पूरे नेशनल लेवल पे दिस इज़ द एजेंसी I4C जो पूरा टास्क अपने पास लिए हुए बैठी है, और विच इज़ इवॉल्विंग वेरी फास्ट, और विच इज़ मेकिंग हार्ड फॉर द क्रिमिनल्स की, और आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, और जो भी इन्वेस्टिगेटिव पोर्टल है हमारा, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, उसको किस तरह से इवॉल्व किया जाए विद द ऑन गोइंग नीड्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। नेक्स्ट। तो लास्टली, कभी भी आपके साथ ऐसा क्राइम होता है तो यू शुड, जब भी आपको कुछ सस्पिशियस लगता है तो अडॉप्ट दिस 3 वर्ड स्ट्रैटेजी कि यू शुड स्टॉप फर्स्टली, देन यू शुड थिंक कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको कुछ भी सस्पिशियस लगता है, देन यू टेक एक्शन, देन यू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 3 वर्ड स्ट्रैटेजी ऑलवेज रिमेंबर इन योर हेड व्हाइल यू आर डीलिंग ओवर इंटरनेट, की टू स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। कुछ भी हीट ऑफ द मोमेंट है, इमोशनल चीज़ में नहीं करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इट वॉज इंडीड एनरिचिंग एंड आई ओपनिंग सेशन फॉर एवरीवन। और सब अब जो कॉलर ट्यून बजता है रोज, तो आप उसको गाली देते हो, इग्नोर करते हो, बट इट इज़ रियली फॉर आवर अवेयरनेस। तो उसकी ग्रेविटी समझे और अकॉर्डिंगली जो सर ने गाइड किया है वैसे हम अपनी पूरे लाइफ जो स्टाइल है उसमें भी इनकॉर्पोरेट करें, तो हम ये जो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो आगे का सेशन ब्रीफ 5-10 मिनट के अंदर हमारे पास साइबर वॉलंटियर है मनीष भाई, जो different societies, citizen centers, he has gone and awared so many people, क्योंकि awareness is the key to curb this crime. So he will guide us how it is important to be aware and what measures we as a citizen and employees can take. So please Manish bhai. Thank you so much Divyang bhai. Am I audible to last people जो जोक धीरे धीरे वो नींद आनी शुरू लगी है, उन लोगों के लिए खास। वैसे भी आफ्टर लंच का कोई भी सेशन होता है तो थोड़ा डल होता ही है, बट क्यूरियोसिटी, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट सेशन। यू माइट हैव गॉन थ्रू द वेरियस cyber security session, but this cyber crime session, this is the first time in this organization, right? तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई पुलिस वाले लोग आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन करेंगे, समथिंग मज़ा नहीं, वो कुछ क्यूरियोसिटी लग रही है, बट दिस इज़ ए फैक्ट, दिस इज़ हैपनिंग नाउ। वी आर इवॉल्व
because threat hunters, threat actors are evolved, right? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म इन पर्सनल लाइफ एज वेल, राइट? तो थ्रेड्स जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच सर हैज़ ऑलरेडी कवर्ड, फ्यू टिप्स यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगा. वाई इट इज़ हैपनिंग, वाई इट इज़ इंक्रीजिंग, हैव यू थॉट ऑन दैट? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? That is there. So 4 influence factor I would like to highlight over here. The first one is the fear. Digital arrest is nothing but the fear. Root cause is a fear, right? Second, lalach, temptation, maximum financial. जो shortcut लोग ढूंढने जाते हैं, that is because of that only. Third one, surprisingly, laziness. अब आप बोलोगे कि लेजीनेस का क्या चक्कर है भाई ये साइबर क्राइम के साथ? एग्जाम्पल के साथ मेरी एक आदत है, बुरी आदत है वैसे, स्टोरी टेलिंग, क्योंकि कोरिलेट किए बिना किसी को हजम नहीं होगा टॉपिक, ये टॉपिक ही ऐसा है, राइट? सो लेजीनेस का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा. सपोज आपका फ़ोन, अभी जो हर 3 साल में वो आदत है ना हमारी कि 3 साल में फ़ोन, 5 साल में, 15 साल में घर, 5 साल में गाड़ी और 15 साल में घर, और बाकी आप सोच लो, राइट? सो ये ट्रेंड में टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराना जो फ़ोन है वो ज़्यादातर बेचते हैं किसी को, या तो फिर घर में MP3 के गाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? और एक सिम कार्ड डाल के कभी इमरजेंसी में यूज़ करना हो, लोग वैसे भी यूज़ करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. आपका फ़ोन है, आपका ऐसा ही फ़ोन है जो 1500, वो नोकिया का वो आता था ना, गुजराती में उसको लब यू मोबाइल बोलते थे. इट वॉज अ बेस्ट वन, क्योंकि फ़ोन किस काम का? अभी तो ये स्मार्ट और ओवर स्मार्ट फ़ोन आ गए अभी तो आजकल, जो हमसे ज़्यादा जानता है, हमसे ज़्यादा जानने वाले फ़ोन है. अभी भी आपके बहुत सारे फ़ोन मुझे सुन रहे होंगे जो आप नहीं सुनते, लेकिन वो मुझे सुन रहे होंगे. अभी भी मैं है गूगल, बहुत सारे लोगों के गूगल ऑपरेट होने शुरू होंगे, आप देख लो. दिस इज एरा इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ. 1500 रुपये का एक डिब्बा हो हमारे पास, सिम कार्ड उसमें डाला है, वो कहीं पे गिर गया तो हम लोग उसकी कंप्लेन नहीं करने जाते हैं. लेजीनेस. किसका मोबाइल बोला भाई? गूगल जाग गया. इट हैपेंस. रियल लाइफ एग्जांपल, राइट? दो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, दैट इज एग्जाम्पल. 1500 रुपये का सपोज ये मोबाइल है जिसमें कहीं पे गिर गया और कहीं पे खो गया. वी डू नॉट वांट टू कंप्लेन ऑन दैट, वी डू नॉट रजिस्टर FIR ऑन दैट. क्यों? 1500 रुपये में यार 1500 धक्का खाना पड़ेगा पुलिस चौकी में, और ये होगा मेंटल हेरेसमेंट. जाओ यार, 1500 रुपये का दिन जाएगा हमारा. दैट इज व्हाट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वी डू. अब सोचो आगे जाके, दैट इज अगेन ए रिस्क. आपने ISO इंप्लीमेंट करा है 27 के, राइट? रिस्क मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ दैट ओनली. आपको अज्यूम करना है, रिस्क आने से पहले उसको अज्यूम करना है, राइट? अब ये मोबाइल आपका गिर गया कहीं पे, आपने छोड़ दिया, चलो सिम कार्ड ले लेंगे, कुछ कर लेंगे. अब ये गिरा हुआ मोबाइल किसी के हाथ में आया और किसी को मस्ती करनी है, जस्ट फोन उठाया, देखा सिम कार्ड है इनबिल्ट, लगाया PM ऑफिस को, मोदी जी आपकी केबिन में बम ब्लास्ट होने वाला है. बस उतना ही काम करके वो मोबाइल फिर से फेंक दिया, चल पड़ा बंदा. कैन यू इमेजिन व्हाट इज अ रिस्क बिहाइंड दैट? अब ये 1500 रुपये का मोबाइल जो चोरी हो गया या फेंक दिया या गिर गया कहीं पे, व्हाट विल बी द रिजल्ट? कैन यू इमेजिन? छोटी सी गलती, आपने FIR भी नहीं करी उसकी, जाने दो ना यार, 1500 का खर्चा है, जाने दो, छोटा सा मोबाइल था, खो गया, नया ले लेंगे. मिसयूज हो गया. अभी हिंदू में कहावत है, वो जो अच्छा जी जाता चला जाता है, आत्मा अच्छी होती है ना, तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं. वी कॉल दैट. हमने देखा नहीं है, बट दैट इज देयर.
तो सिम की चोरी, मतलब सिम कार्ड से अगर ये ऐसा कॉल पीएमओ ऑफिस में गया सपोज, कौन लेने आएगा? वो पार्षद के रूप में कौन आएगा? हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, आप देख लो। और न्यूज़ पे क्या चलता होगा, सुनो ये स्टोरी, ट्राई टू इमेजिन व्हाट इज द सीरियसनेस आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट ओवर दैट। पार्षद उतरेंगे हेलीकॉप्टर से लेने के लिए आपके घर पे, क्योंकि आधार कार्ड लिंक है वो सिम कार्ड के साथ, आपका एड्रेस है वहां पे। आज तक और सारी चैनल है, देखो देखो क्या हो गया, देखो देखो, चैनल चलती रहेगी। बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। तमाशा क्या था, 1500 को रुपया, 1500 को एक मोबाइल गिर गया था जस्ट। बाकी की स्टोरी आप सोच लो, हमारे पास टाइम नहीं है। इतना बता सकता हूं रिजल्ट में, वो बंदा जब बाहर निकल के आएगा पुलिस चौकी से, रबड़ जेवो થઈ ગયો है। You can imagine, right? So that is the impact. Laziness, crime की कंप्लेन क्यों नहीं करते? वी आर अवेयर, वी हैव टू वेकन अप अवर सोसाइटी, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। हमारा मोबाइल खो गया, हमारा नुकसान हो गया, सो जाने की जरूरत नहीं है। सपोज साइबर क्राइम हुआ हमारे साथ, मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, 1000 रुपये का फ्रॉड हुआ, 500 रुपये का फ्रॉड हुआ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सोसाइटी को बचाने की। एक बंदे को रिपोर्ट करोगे 1930, सिर्फ कॉल ही करके आपको इंफॉर्मेशन देनी थी, आपका 500 रुपया वापस नहीं आता, आई एग्री विद दैट, दूसरे का तो नहीं जाएगा इसी वजह से। डू वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट? इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस? इज इट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, राइट? ये जो नंबर सर ने बताए शुरू में हमें, जो आगे इतने बढ़ गए, वो क्राइम, सिर्फ क्राइम नहीं बढ़ा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो, एंड दैट इज वेयर दिस अवेयरनेस प्लेज क्रूशियल रोल। We were talking about that. Do you understand that this kind of session, if threats are evolving, तो ऐसे awareness के sessions की frequency बढ़ानी चाहिए. It is necessary, and that why not only for the IT people or working, this awareness needs to be implemented in our culture with the senior citizen and the spouses at home workers as well. अपने घर में बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द कंटेंट सर हैज़ ऑलरेडी कवर्ड, बट हनी ट्रैप जैसे जो स्कैम्स होते हैं सीनियर सिटीजन के पास, मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम शेयरिंग दैट, बिकॉज जहाँ भी सोसाइटीज़ में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कहीं से कोई ना कोई तो मिल ही जाता है शेयर करने वाला। सुसाइड तक जाते हैं लोग, सुसाइड तक, ट्रस्ट मी। क्यों ऐसा? हनी ट्रैप कैसे होता है? ये वीडियो कॉलिंग वाला, डिटेल में थोड़ा टेक्निकल बताने की कोशिश करता हूं आपसे। टाइम इज अ लिमिट बट विल नॉट टेक मच टाइम। कैसे होता है वीडियो कॉलिंग? वी ऑल नो फीचर्स ऑफ वीडियो कॉलिंग, राइट? बट लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न, हाउ दिस क्राइम इज हैपनिंग। वीडियो कॉल आया, हमने उठाया, सबसे पहले सामने वाले को क्या दिखेगा? ओनली वन स्टेप, इमीडिएट, सामने वाले को अपना डीपी। Next step, when you enable your camera, then we will be live in front of the camera, whatever it is, it will be shown to the criminal. अब ये threat actors जो है ना, वो भी डिस्प्ले पिक्चर भी दिख गया, that is enough for them. सामने वाला बंदा या बंदी जो भी हो, अपने खुद के कपड़े उतारना शुरू कर देगा। वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, सपोज आपने आपका कैमरा इनेबल कर दिया तो कमिट हो गया। अगर नहीं भी किया फिर भी डिस्प्ले पिक्चर जो आपका डीपी जो है इन लाइव वीडियो इट इज देयर। सिंपल एज आपने सिर्फ गलती से वो फोन भी उठा लिया, डीपी चला गया, 2-3 मिनट्स वीडियो, इट इज इनफ फॉर स्टार्ट ब्लैकमेलिंग टू दैट। वही वीडियो आपको वापस व्हाट्सएप पे शुरू होगा। ये कहानी सुसाइड तक कैसे जाती है, सुसाइड तक ले जाती है हमें। दिस इज नॉट अ सिंपल फ्रॉड विच इज हैपनिंग। सीनियर सिटीजन के साथ लाखों रुपया देने के बाद भी ये अटकता नहीं है। इमीडिएटली व्हाट्सएप पे वो बंदा जो सामने वाला है वो आपको रिवर्ट करेगा, ये वीडियो है आपका डीपी वाला और आपने मेरे कपड़े उतरवाए हैं। देयर इज नो एविडेंस कि भाई खुद ने उतारे, आपने उतरवाई। ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट। आई विल अपलोड टू यूट्यूब, सेकंड फोन आएगा। अगर डिलीट करना है तो 15,000 10,000 वॉट एवर द नेगोशिएशन विल बी। उसके बाद एक यूट्यूब का ऑफिसर फोन करेगा कि यस सर मेरे पास ये वीडियो आपका आया है कुछ,
मैंने सोचा आपको यूट्यूब पे कोई अपलोड कर रहा है उसको मैं रोक सकता हूँ, 20,000 दो। फिर साइबर क्राइम ऑफिसर, ये आपने किसी लड़के के कपड़े उतरवाए, ऐसा वीडियो हमारे पास आया है, 1 लाख। फिर एक डीएसपी साहब आ जाएंगे, उसके बाद एक अस्थाना साहब बहुत फेमस है हमारे, उसका कॉल आएगा, लड़की अभी सुसाइड कर रही है। रिलेटिव कोई भी बोलेगा कि लड़की सेल्फी लेगी, गले में फंदा डाल के सेल्फी लेगी और फोटो आपके पास पहुंच जाएगी, ये अभी सुसाइड करेगी, 2 लाख दो। उससे आगे ये क्राइम जाता है, डीएसपी ऑफिसर साहब बोलेंगे कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, अभी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। कहानी जब तक हम सुसाइड डिसाइड नहीं करते तब तक नहीं रुकती है। इनसे डरने, द इन्फ्लुएंस फैक्टर विच आई वॉज टॉकिंग, डर, इनसे डरने की क्या जरूरत है? देखो वीक मोमेंट, most of the technical and the content which is already covered by sir, right? But I just want to highlight how we can prevent with this. Weak moment is word. See, weak moment, nothing but I call as weak moment is where you will have some extreme priority to other matters. ट्रैफिक में फंस गए हो आप, कोई आपका हॉस्पिटलाइज हो, आपकी थॉट प्रोसेस कंटिन्यूअसली एंगेज है विद दैट पर्टिकुलर मैटर, आपको जल्दी एयरपोर्ट पे पहुंचना हो, जल्दी है, उस टाइम पे किसी का कॉल आ गया, आप सोच ही नहीं सकते ये अननोन है कि नॉन है, कोई भी, आप सोचने से पहले आपने उठा लिया, भाई अभी क्या है यार, कुछ टेंशन है आपके सर पे, दैट इज कॉल्ड एज अ वीक मोमेंट। और वीक मोमेंट पे किसी का भी कॉल आता है, वी इंडियंस मोस्टली विल बी ट्रैप्ड। और ये वीक मोमेंट में कोई भी, ये मैं अभी ज्ञान बांट रहा हूं ना सबको, आपने 1.5 घंटे वेस्ट और इन्वेस्ट, दैट यू बेटर नो, बट ये ज्ञान 1.5 घंटे से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, ये ज्ञान हमारे पास, हम लोग ऐसे समझते हैं हम लोग एक्सपर्ट है, बट हम भी फंस सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो खेत में बैठे हुए बंदे, खेत में जो नक्सली लोग जो बैठे हुए बंदे, जो लिटरली इलिटरेट है, लेकिन एआई का पावर यूज करके, डेटा साइंस यूज करके वो अटैक कर रहे हैं लिटरली। दे नेवर नो कि पुलिस ऑफिसर के साथ ये फ्रॉड कर रहा है, वो दे डोंट नो, ब्लाइंडली मेकिंग ए कॉल। और ये वीक मोमेंट में हम लोगों ने गलती कर दी, अगर फोन उठा भी लिया, डरने की जरूरत नहीं है, राइट? ये होना ही है, हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं, उसकी कंप्लेन करो। पैसे कभी भी मत दो, वेदर इट इज अ रैनसमवेयर अटैक, पैसे देने की जरूरत नहीं है बिटकॉइन में। बिटकॉइन में भी पैसे देने के बाद इफ यू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा डेटा वापस आएगा, फॉरगेट अबाउट दैट, कोई मैकेनिज्म नहीं है आपका डेटा वापस लाने के लिए वहां से, सो डोंट एंटरटेन देम, राइट? तो ये दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 1 मिनट आई विल टेक, एक्सपोजर जो सर ने बताया, हाउ वी कैन रिड्यूस द टिप्स ऑफ दैट, रिड्यूस अवर एक्सपोजर। गिबली आर्ट, भाई क्या जरूरत है, सारे लोग गिबली गिबली करके पर्सनल फोटोग्राफ्स, अरे भाई क्यों? वो एआई हमसे सीख रहा है, यही सारी चीजें सीख रहा है, और वो फिर दुनिया को बांटता फिरेगा, किस किस को नहीं बांटेगा, वी नेवर नो। क्यों अपलोड करते हैं ये गिबली? क्यों? लाइक लेने के चक्कर में, सिर्फ 5-10, ये लाइक के चक्कर में हम लोग क्या दे रहे हैं? ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट, हमारे जो बुजुर्ग बोला करते थे कि फ्री में कोई चीज नहीं होती है, फ्री में, मुफ्त में कोई चीज हो ही नहीं सकती। इफ यू अंडरस्टैंड दिस सेशन ऑल्सो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट ए फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज अ वेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफ योर 2 hours, माई डियर फ्रेंड। सारी चीजें पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है, कुछ चीजें ऐसी भी है जो पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेयर वी नीड टू फोकस। एम आई राइट और रॉन्ग? सन्नाटा क्यों छा गया भाई? ये तो एंड ऑफ द सेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, ये सेशन डराने के लिए था। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डरावना सेशन? डराने के लिए आए थे पुलिस वाले? एब्सोल्युटली नो, दिस सेशन इज टू enable you to utilize a technology, understanding the threats of that, right? आपको इसके बिना चलना ही नहीं है। आप बोलोगे कि मैं कल से मोबाइल को छूना बंद कर दूंगा, इज इट पॉसिबल? आप ऑनलाइन बैंकिंग बंद कर दोगे,
यूज ही नहीं करोगे यार, इतना डरना, इतना सारा कुछ हो रहा है, वीडियो कॉलिंग कल से बंद कर पाओगे? इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। रात को तकिए के नीचे भी मोबाइल रख के सोने वाले लोग हैं, जो कोई पर्टिकुलर बज आती है तो जाग जाते हैं। डू दैट, बट अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ दैट माय डियर फ्रेंड। जस्ट दैट इज लास्ट लाइन फ्रॉम मी एंड आई विल कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। आपने 2 घंटा हमें सुना, राइट? थैंक यू। Thank you so much, Mr. Manish Thakkar. Please have a seat. Do you have any questions? We would like to go quickly for Q&A, and after that we'll go for vote of thanks. Yeah. CIR पोर्टल में जब मोबाइल लॉस्ट होता है तो FIR नंबर लिखना कंपलसरी है? इज इट? बिकॉज आई हैड फेस वन ऑफ माई फ्रेंड्स सिचुएशन ओवर देयर। हाँ, ये कंपलसरी है। कंपलसरी? यस, बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ओनली अ लेटर फ्रॉम द। और आप EFR भी कर सकते हो। ओके। हाँ, EFR भी। Yes, it is necessary. But you can always, I mean, 1930 will help you there. Okay. If you have talked to 1930 immediately, there will be a CRN number will be generated, which you can post over there. Okay. Thank you. This is a similar. See, one important topic which was covered by sir as well, right? Due diligence. पैसा immediately आपको वापस क्यों नहीं मिलता है? क्यों इतनी lengthy process है? There is a logic behind that. I forgot to address that particular question. कोर्ट क्यों चाहिए भाई? हमारा पैसा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रिवर्स एग्जाम्पल ऑफ दैट। हम गुजराती क्या करते हैं? नॉट गुजराती यार, सब करते हैं ऐसे। बट ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं हम लोग, ठीक है? एग्जाम्पल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन हैपन। 5 लाख का ज्वेलरी लिया, सोनू ले लिया, भी तो हार हीरे मोती सब ले लिया, 5 लाख का। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वाइप करके इमीडिएटली बाहर आके 1930 मेरे साथ फ्रॉड हो गया। दिस इज फ्रॉड और नॉट? नॉट फ्रॉड मैम। आपने परचेज किया है, हाउ कैन इट इज ए फ्रॉड? नहीं, सामने नहीं, हम फ्रॉड कर रहे हैं 1930 के साथ। सो इसीलिए कोर्ट का ड्यू डिलीजेंस चाहिए कि भाई सही में पैसा देना था और गया, या सही में देना था और आप अननेसेसरी बेचारे को फंसा रहे हो, राइट? सो ड्यू डिलीजेंस इज रिक्वायर्ड बाय कोर्ट. सो पुलिस विल डू ओनली द फ्रीजिंग ऑफ द मनी. सी यहाँ पे 4 घंटे का भी टाइम है, गोल्डन आवर्स इट इज कॉल्ड. फाइनेंशियल फ्रॉड में अगर जल्दी से जल्दी कंप्लेन करो, बट वो 4 घंटे में करो तो देर इज ए चांस कि मैक्सिमम पैसे जितने भी फ्रीज हो सके, फ्रीज हुए तो ही वापिस आने, सर ने ऑलरेडी समझाया. देर इज अ रिस्क विच आई विल हाईलाइट. 4 घंटे भी नहीं मिलेंगे. सपोज क्या हो रहा है कि ज़्यादा अमाउंट है तो ये थ्रेट एक्टर्स क्या करते हैं, डमी अकाउंट्स जो होते हैं इनके, और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं सबसे पहले सारे अकाउंट में और फिर धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं. उसमें टाइम जाता है. मैं जो यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, सपोज दिस हैपन्स टू योर अकाउंट कि 1 करोड़ का सपोज अकाउंट आपका हैक हुआ और 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ और सीधे ही वो बिटकॉइन में कन्वर्ट हो गया. इज देयर एनी चांस? 1 करोड़ क्या 10 करोड़ 50 करोड़ जितना भी डालो, 4 घंटा भी गोल्डन आवर में कंप्लेन होने के बाद भी पैसा वापस नहीं आएगा. इमीडिएटली विद इन ए 1 मोमेंट, 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी कैन से. बिटकॉइन अगर परचेज कर लिया किसी ने, इट इज गॉन, कंप्लीटली गॉन. 4 घंटे तो, और वो भी वॉलेट में, वॉलेट वाला दैट इज नॉट अंडर द आरबीआई. हाँ, एयरटेल वॉलेट, वोडाफोन वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, दे आर नॉट कंट्रोल्ड. This transaction, if it is happening only to the bank accounts, then the RBI rule will be applicable and this is how this will work. वो वॉलेट वाले केस में कोई ट्रेसिंग नहीं मिलता क्योंकि वो दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई एंड देयर इज नो, आई मीन द रूल विच इज इम्पोज टू. सो वॉलेट से किया हुआ कोई भी ट्रांजेक्शन है, प्लीज बी अवेयर कि वो ट्रेसेबल नहीं है. देयर इज अ चांस दैट यू विल लॉस मनी. एम आई एड्रेस दैट? Thank you.
Any other questions? Yeah. Second mic. So my question is like we are posting the जो पोर्टल बताया उसमें हम कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तो उस केस में अगर मुझे कोर्ट में एड्रेस करना है तो व्हाट डॉक्यूमेंट आई हैव टू सबमिट टू द कोर्ट, बिकॉज इट्स नॉट मैन्युअली मैं कुछ एफआईआर कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो व्हाट डॉक्यूमेंट आई कैन गो फॉरवर्ड विद माई बैंक एंड विद द कोर्ट. There are many different cases. If you are talking about the financial frauds, there are, sir has already mentioned the process itself. You do not need to go to the court. Police will fill up the summary and all the details, and then you will have to appear in the court. So there is no document will be asked by the court at that particular time, because almost all the process has been completed by the police agencies. Particularly if you give some example, I will be able to help you on that. Hmm. So I have to approach my bank also. In that case, if I submit a case to the crime portal, what document I have to submit to my bank? So, Saib, whenever you complain to 1930 or whether it is a crime portal, there is a note, the report will be generated from there itself, which contains the CRN and FIR number as well. And this is a valid document to submit to the court as well. Yes, PDF will be generated. After you completed this, all the filling of the information, there will be generated that. The last step of that is the creating a PDF of that. And that is valid. I think आपका काम it gets over once you report on the portal. Just keep the CRN number, that acknowledgement number handy with you. Otherwise, क्योंकि आपने report कर दिया है crime एक बार, rest of the process police will take care of that. मतलब किस बैंक से कितना पैसा गया, किस बैंक में गया, everything is a part of investigation. तो आपको बस पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा. There will be a pre-filled form जिसके अंदर आपका कस्टमाइज डेटा डाला जाएगा. यू हैव टू साइन. बेसिकली सिंस यू आर दी एक तरह से एप्लीकेंट जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो इट गोज टू द कोर्ट विद योर साइन कि यू आर अप्लाइंग फॉर मनी रिफंड. बाकी जितना भी हेल्प है दैट पुलिस डज. Any other questions? Please raise hand. Priyanka would hand over the mic to you. After this, we'll take one more question and then we'll wrap up in the interest of time. Hello, sir. Thank you for the incredible session. It was very insightful. I just have one question for you. What will be if suppose some victim has transferred some 1 lakh or suppose more, how much amount from this can be recovered? As I've told, it totally depends upon your luck कि in which account that money has gone into. अगर उसमें depends upon the actually skill of the scammer. अगर he is skilled enough तो within 1 minute he'll withdraw all the money. वो अपना एक बंदा ATM के बाहर रखेगा, जैसे ही आपने 1 लाख रुपए उसको दिया, he will go and take out the money next second only. So it depends totally upon your luck. Thing that you can do is to report it as soon as possible. अगर वो जितना टाइम लेगा उतना ही बेस्ट आपके लिए. अगर उसने एक दिन ले लिया एंड यू रिपोर्टेड इन दी नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, तो अकाउंट विल गेट फ्रीज्ड एंड योर मनी विल बी सेव्ड. देन यू विल गेट 100% ऑफ द रिफंड. बट उसने अगर 10,000 निकाल लिए, 20,000 निकाल लिए, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द स्कैमर एंड योर लक. मतलब इसमें ऐसा कुछ परसेंटेज वी कैन नॉट डिफाइन, टोटली केस टू केस बेसिस. Okay, thank you, sir. All right, any more questions? We can take one more. Yeah. So we have Harsh and Karthik asking the question. We'll take both, definitely. Yeah, Karthik.
हेलो सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी इंटरनेशनल कोई क्राइम होता है फाइनेंशियल, तो उसके लिए सेम पोर्टल पे हमें जाना पड़ेगा या उसका अलग कोई पोर्टल है? पोर्टल इज द सेम। ओके। Harsh, you want to ask? Harsh. Sir, my question is, like, financial fraud and digital fraud is increasing day by day, and directly, indirectly, it means that, say, we are not able to punish the offenders on a timely manner. It would mean that. So what are the chances that, say, if I have filed an FIR, irrespective of the outcome, whether I have received my money or not, but that person would be punished? Like, on an average, what is the ratio? Is it a billable offense? And are the offenders repeated offenders, or it would be one of each time there would be a new offender? Mostly see what happens कि the scam जो आपके साथ होता है mostly it is not confined to one area. मतलब अगर कोई स्कैमर गुजरात में है, since एक मैंने आपको पोर्टल बताया था I4C is an agency. तो what it is doing, it is मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा पुलिस उसके अंदर डालती है, they create a network map. नेटवर्क मैप इन द सेंस कि वो एक अकाउंट जो डिटेल पूरा ट्रेल आता है उसके अंदर देयर इज़ अ नंबर, उसके अंदर लिखा रहता है कि हाउ मेनी टाइम्स दैट अकाउंट हैज़ बीन यूज्ड इन अ सम अदर फ्रॉड. ठीक है, तो मोस्टली द I4C विच इज़ द एजेंसी, इट क्रिएट्स अ मैप ऑफ द ऑफेंडर्स कि ये दिस पर्टिकुलर ऑफेंडर, दिस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर और दिस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर ये कितनी बार कहाँ कहाँ पे किसी स्कैम में इन्वॉल्व है. दे क्रिएट दैट रिपोर्ट. तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो दे कैन ऑलवेज गो एंड कंसल्ट विद दैट वेबसाइट. मतलब वो I4C से जाके कंसल्ट करती है, वो रिपोर्ट आपके लिए बना के देते हैं. वंस यू कैच समवन, अगर मैं किसी ऑफेंडर का उसमें नाम डालता हूँ तो मोस्टली चांसेस आर कि वो शायद हो सकता है कि किसी और स्टेट में ऑलरेडी पकड़ा गया हो, क्योंकि कोई भी स्कैम कर रहा है तो वो सिर्फ गुजरात में स्कैम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता. दे आर मोस्टली नेशनली बेस्ड. तो मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं कि ऑफेंडर को कैच करना. देखिए क्या होता है कि मोस्टली जो एप्लीकेंट है, जो हम मतलब कॉमन सिटीज़न है, उनके लिए सबसे बेसिक और सबसे मतलब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इज गेटिंग देयर मनी बैक, है ना. एक बार आपका 1 लाख रुपए गया, वो आपके पास आ गया वापस, देन यू डू नॉट केयर कि किसी को पकड़ा जाए कि नहीं, वो दैट इज़ अप टू पुलिस. ठीक है, तो मोस्टली अभी सिनेरियो में ऐसा है कि फॉर स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मनी पुलिस इज मोस्टली फोकसिंग ऑन गेटिंग योर मनी बैक, है ना. एंड वंस इट बिकम्स वेरी बिग और ऐसा कुछ लगता है उस नेटवर्क एनालिसिस जो रिपोर्ट जनरेट होती है I4C की तरफ से, उसमें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बड़ा स्कैमर है, मल्टीपल स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है, बहुत सारे ऑफेंसेस से रिलेटेड है, देन दे आइडेंटिफाई हिम एंड देन दी पुलिस विच इज टेकिंग अप दैट केस गोज एंड कैचेस. तो मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व. तो मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, नॉट टू डिसहार्टन यू, पर 500 रुपये किसी के गए हैं तो उसके पीछे, क्योंकि क्या है कि एफर्ट चाहे 500 रुपये हैं, चाहे 10 लाख रुपए हैं, चाहे 10 करोड़ रुपए हैं, इट इज़ द सेम. तो किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द पुलिस. एंड मोस्टली बट सिंस मैंने आपको बताया कि दे आर बेस्ड इन मल्टीपल स्टेट्स में स्कैम करते हैं, तो इस डायरेक्शन में भी एफर्ट लिया जा रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स भी जनरेट होती है ताकि यू कैन आइडेंटिफाई. ताकि ऐसा भी होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे स्कैम हुआ, हमने रिपोर्ट मंगवाई, हमने देखा कि यार वहाँ पे तो हमको पता लगता है कि इसको ऑलरेडी वहाँ पे पकड़ा जा चुका है, ये तो हमारा केस क्लोज हो जाता है कि ठीक है, हमने फिर वी विल ओनली फोकस ऑन गेटिंग योर मनी बैक. तो इस तरह से. कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ यहाँ पे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज़ ऑलरेडी कवर्ड, राइट. दिल्ली में दिसंबर में एक ऐसा ही कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट चल रही थी, पूरी सोसाइटी बिल्ड हो रही थी, मतलब DLF सिटी जैसे वैसा सिटी डेवलप हो रहा था. 25,000 पीपल वेयर वर्किंग ओवर देयर. वहाँ पे 2 प्रोवाइडर थे, आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक एयरटेल वाज देयर और दूसरा वोडाफोन था या कोई और था. उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के टेंट लगाए. डिस्ट्रीब्यूटर के 2 लोग वहाँ पे श्रम, मोदी जी श्रम आयोग का छाता डाल के बैठे हुए थे और इन्होंने 25,000 लोगों को सिम एक्टिवेट करवाने के तरीके, मतलब श्रम कार्ड एक्टिवेट करेंगे करके उनके थंब ले लिए
this is how this 25,000 fake SIM has been generated, activated. जिनमें आधार कार्ड और ये ऑथेंटिकेशन का जो मैकेनिज्म था वो मजदूरों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ. उनको तो कुछ कार्ड मिलना चाहिए था, उसकी एप्लीकेशन उन्होंने करी कि मोदी जी कुछ फायदा करवाएंगे. ऐसे इलिटरेट लोगों को यूज करके सिम कार्ड एक्टिवेट करवाए. You know, do you know, I mean, how many of the copies of your Aadhaar card is distributed outside of your control? We never know. That is where the awareness comes in a picture. और आपके ही आधार कार्ड पे कोई बैंक अकाउंट ऑपरेट होना शुरू हो, how the criminal will be identified over there. That is also a biggest challenge for them. Being as a neutral agency, I'm telling them. This is the difficulty, I understand that. And that is where this awareness is very, very important. The partial answer of that. आधार कार्ड का मिसयूज हो गया, अभी किसी को पता ही नहीं. अपने गांधीनगर का केस हुआ था. गांधीनगर में एक पर्टिकुलर एक ऐसा स्टोर था जो वो क्या होता था कि आप आधार कार्ड जब भी लेके जाओगे, कोई पान कार्ड या कॉन्फिडेंशियल आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसकी जेरोक्स करवाते थे. 1 रुपया 3 रुपया जो भी चार्ज लगता था, लेकिन उसकी एक एडिशनल कॉपी वो बंदा इकट्ठा कर रहा था. इट वॉज सेलिंग 10-10 15-15 रुपये में वो इट वॉज सेल्ड इन द मार्केट. मार्केट मीन्स कोई बंदा था जो लेने वाला मिलता था. और वो हाउ यू ट्रेस दैट? कल को ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरे नाम से कहीं पे फ्रॉड हो गया. सी बहुत कहीं हमारा जो ये म्यूल वाला जो सर ने एग्जांपल बताया ना, हमारे भी नॉन हम ना जेन्यून भी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं. क्यों हुए हमारे फ्रीज? क्योंकि कहीं ना कहीं पे यूज हुआ है वो अकाउंट का. वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. So this is how it is becoming a challenge to reach to the person. Wonderful. So it was quite an insightful session, and I can see in everybody's facial expression that it was so much important for all of us to have such kind of a session, especially at our organization, and it's kind of a very good awareness. So I really thank you all for being part of informative and impactful session regarding cyber safety. Today we explored wide range of topics from cybercrime statistics to psychological threat that they are providing. We are seeing influencers putting these videos that they were under digital arrest, but please don't be that one is what they are trying to say. From cyberbullying, cyber stalking, customer care frauds, everywhere you have to be vigilant. So this is in the interest of that. Please be mindful. Overall, I would like to really thank the speakers, Mr. Manish Thakur and Shri Ayush Jain. And I would like to say here that it was quite an organized way that Jignesh sir thought that we should have that event with Divyam's insight, that we should have such an insightful session in our organization. So I really thank you all for that, and all the stakeholders who have taken out their time to come and attend it with all the participants. Overall, I would like to say from Briefly, we extend our heartfelt thank to esteemed speakers and for this valuable insight. A big thank you to everybody. I would call Priyanka to bring the memento, and I would like to call Rajesh sir to give the memento to Mr. Rakesh Damor. Please come forward. Thank you so much. I would like to call Shri Ayush Jain and partner Prashant Chauhan forward to give the memento. Shri Ayush Jain, please come forward. Thank you. I would like to call Mr. Manish Thakur, and I'd like to call Harsha to represent the memento. Thank you so much. Great.
So here we would end our session. I would just like to say 2 words here. Let us stay informed, responsible and safe in our digital journey. And just like Mr. Shri Ayush Jain said that, stop, think and take action accordingly whenever you are going for your digital footprint. Thank you so much. Have a good time.